तो अगर मैं कहूँ कि अब तक जो हमने जितना पढ़ा कल से लेके आज तक का, what you have learned from that, or rather if I say what is the idea of India that you have that has been generated in your mind after reading so much, although it's not so much, it's so less, but you have कुछ समझ क्या, what was India, what is India and what will be India? हाँ, क्या समझ में आया? टोटल अप्स एंड डाउन्स में क्या पर एक चीज के लिए सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, ओके, और stable politics we need for the progressive. yes, we need a stable political atmosphere for further future development, or इनबिल्ट colonialism mentality अभी भी है which we are not able to get rid of. yes, that feudal mindset, that colonial mindset still somewhere exists in our backdrop. We have to focus on human development In future, human development in what sense? in health, education. Yes, that is the area where we still need to work on, or People's behavior matters in progress of country. in what sense? Behavior in, Still we have to say that means don't do open defecation. okay, हाँ, अभी भी हमें इस चीज़ पे Don't speed. means duties for rigorous implementation. but don't you think that would be a forced Sir, India was That is a problem mindset, sir. देखो, जैसे आप अगर देखें तो स्वच्छ भारत अभियान जो चला, इट्स रियली गुड. वाई इट वॉज गुड और वाई इट वॉज सक्सेसफुल? बिकॉज ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन. ऐसा नहीं इससे पहले नहीं था, इससे पहले था. तो वो एक अब देखो, वो फोर्स तो नहीं था ना, कोई फाइन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू और लोगों का जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं सोसाइटी के, उनके पार्टिसिपेशन के, उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू इसको the awareness about cleanliness was spread, and I believe now people are following on a larger extent. अभी भी complete हम कहते हैं कि वो cleanliness वाला part हमने achieve नहीं किया है, लेकिन still it has been achieved to a larger extent. पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट. Political and constitutional, कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस. yes. सो मेनी गवर्नमेंट स्कीम होती है, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे इसलिए हमें अभी पता चला है. इसके पहले तो हमें तो वो उतना भी पता नहीं था. हाँ, ये एक चीज़ है कि हमें पॉलिटिकल हमें एक्चुअली पॉलिसी अवेयरनेस सिर्फ उन्हीं को पता होता है जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो. दैट्स ट्रू. यू कैन नॉट से दैट्स ट्रू. तो ये हाँ, मगर दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस. मीन्स आप पॉलिसी रोल आउट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो पॉलिसी लोगों तक नहीं पहुंच रही है, इफ़ कॉमन मैन इज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट दोज पॉलिसीज़, somewhere this is a part of governance. And about constitutional awareness, yes, unfortunately civics जो पढ़ाया जाता है, it is I believe is more kind of an add-on कि देख लो हो जाएगा, but it is one of a major subject that should be taught more thoroughly at school level, more thoroughly at school level, कि एटलीस्ट जब बच्चा 12th पास करके निकले, स्कूलिंग उसकी ख़त्म हो, तो ही और शी शुड बी वेल अवेयर्ड of his or her fundamental rights and fundamental duties, at least. So we need to spread more political and constitutional awareness. About political awareness, the point we were discussing before the break, कि जो अब हमारा एक political जो हमारे democracy का narrative change हो रहा है, we have to reassure or reaffirm the importance of your representative rather than voting for a particular candidate. बिकॉज ओके, दैट मीन्स ये कभी नहीं होता है कि इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, चाहे ब्रिटेन का देख लिया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम थोड़ी है अमेरिका का कि विल वोट फॉर वन पर्सन, बट स्लोली ना जो कॉमन पार्लेंस में जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं उसी तरफ जा रहा है. और आई वांट टू एक्सट्रैक्ट समथिंग मोर आउट ऑफ यू. क्या मतलब सीखा? The purpose of history is, so that we can plan a future in a much better way, learning from the mistakes. No one is talking about international policy. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो वो तो है ही.
ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंडिया में कहाँ हो रहा है यार? हमारे फंडामेंटल राइट्स आर इनफ टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स. We can say that we don't require a separate declaration of human rights from UN. Rather, our fundamental rights in themselves are enough to protect all the human rights. और थोड़ा सा और elaborative. What is the idea of India? जो हम कल जो बात कर रहे थे कि जो आइडिया ऑफ इंडिया प्रोपगेट करना चाह रहे थे हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस नेशन, फाउंडिंग लीडर्स ऑफ दिस नेशन, वर दे सक्सेसफुल और आर दे और हैज़ द आइडिया ऑफ इंडिया हैज़ रीच्ड द कॉमन मैन ऑफ दिस कंट्री इन 2019? नहीं, somewhat. Because the whole इनिशियल जो हमें एक स्केलेटन मिला था ब्रिटिश एम्पायर से या कॉलोनियल रूल से, उसके अंदर हमें आइडिया ऑफ इंडिया को इनकॉर्पोरेट करना था. एंड वी हैड टू इंश्योर दैट दिस आइडिया ऑफ वन कंट्री, दिस आइडिया ऑफ वननेस इज एक्सपैंडेड थ्रू आउट country, and it should reach, people should understand. I believe that now people have started understanding the idea of India. We are more politically तो नहीं, लेकिन हाँ लीगली अब हम थोड़ा ज़्यादा अवेयर हैं, हम ये कह सकते हैं. पॉलिटिकली अवेयरनेस अभी भी, क्योंकि स्टिल बिकॉज एक कॉमन नरेटिव सा हो गया था अभी बीच में, अभी भी है, दैट इफ़ यू आर एंटी गवर्नमेंट यू आर एंटी नेशनल. This is what I have inferred from various social medias, whatever is running, that if you are anti-government, you are anti-national. No. The soul of democracy is criticism of government. If it is not, and it is not necessary that every time you should criticize government. If government is doing something right, if government is doing something for the welfare of the people, that should be acknowledged, that should be appreciated. But if not, then yes, it needs to be criticized. So, because we always say a stronger opposition is very important for democracy to be in motion. So, itne ke baad bhi there are certain problems that we are still facing. One of the, yes. So, the concept of nation में जो issues का role है, institution का, कहीं percentage में हम successful हो चुके हैं, लेकिन पूरे तरह successful नहीं हो चुके हैं. और institution को strengthen करने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा. देखो, सबसे ज़रूरी है जो हमारा ग्राउंड वर्क फोर्स है, जो एग्जीक्यूटिव नॉट एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बट द मिशनरी विच इज़ वर्किंग एट द ग्राउंड लेवल, दैट नीड्स टू रियलाइज देयर इम्पोर्टेंस. आई हैव सीन मैनी पीपल, बस वो इसलिए जा रहे हैं कि उन्हें सैलरी मिल रही है, वो अपने काम के साथ ईमानदार नहीं है. इट्स ट्रू. गवर्नमेंट कितनी अच्छी पॉलिसी बना ले, मतलब दिल्ली में बैठ के कुछ हो जाए, लेकिन जब तक उसको ग्राउंड लेवल मिशनरी प्रॉपर क्या कहें पूरी ईमानदारी के साथ अगर उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगी, तो वो सारी पॉलिसी मेकिंग जो है ना, वो इट ऑल गो इन वेन. वी कैन नॉट हेल्प इट आउट. सो वी नीड कि जो कल हम बात कर रहे थे कि बॉटम टॉप तो हमारा सही हो रहा है. वी आर हैविंग अ स्ट्रेंथेंड पार्लियामेंट, वी आर हैविंग अ गुड गवर्नेंस, एवरीथिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट गुड स्टफ्स. बट वॉट नीड टू बी डन इज़, ये जो बॉटम लेवल से जो एक मिशनरी काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव मिशनरी, इसके रिफॉर्मेशन की बहुत हैवीली ज़रूरत है. पंचायत बनी ज़रूर थी कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस हो, जो विलेजेस हैं वो सेल्फ रिलायंट हो. लेकिन आज के टाइम पे आप देखिए, पंचायत इलेक्शंस जब होते हैं ना, एवरीवन इज़ लाइक, बंगाल में जब होता है तो वहाँ तो वॉयलेंस के अलावा कुछ नहीं होता पंचायत इलेक्शंस में, ह्यूज वॉयलेंस. एंड जितना, और एक और चीज़ देखिएगा, इलेक्शन का परव्यू जितना छोटा होता है वो उतना ज़्यादा वायलेंट होने लगता है, उतना ज़्यादा उसमें मतलब लोगों के बीच रिफ्ट आने लगता है जितना छोटा इलेक्शन होता है. एमपी के इलेक्शन में इतना नहीं होगा, पार्लियामेंट के इलेक्शन में, लेकिन असेंबली का इलेक्शन होता है तो राइवलरी थोड़ी ज़्यादा दिखने लगती है. पंचायत में और ज़्यादा, लोकल बॉडीज़ के जब होते हैं तो वो और ज़्यादा दिखने लगती है. सो वी नीड what we say, the awareness among people as well as the missionary, and we need a reform from the bottom. हम कहेंगे ना, एक डिस्ट्रिक्ट अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको देख के फिर होता है ना, कई बार आप देखते होंगे किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कोई एक अच्छा स्टेप लिया है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर उसे हाईलाइट किया जाता है, एंड फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग
प्रेशराइज करते हैं, जो सिविल सोसाइटी होती है प्रेशराइज करती है कि आप भी इस तरीके के पॉजिटिव स्टेप्स लीजिए. सो सी, वो अप्रिशिएट होता है क्योंकि वो मिशनरी जो है, वो जो बॉटम मिशनरी है एडमिनिस्ट्रेशन की, दैट इज इन डायरेक्ट टच विद द पीपल. लोगों को मतलब नहीं है, देखो वोट करते हैं लेकिन अभी भी मतलब नहीं है कि व्हाट प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग. दे आर मोर व्हाट देयर लाइफ इज कंसर्न अबाउट इज व्हाट देयर लोकल बॉडी मेंबर, कॉरपोरेटर, पंचायत, म्यूनिसिपल बॉडी, district collector, education officer, what they are doing, because that whatever they do, that affects our life directly. ठीक है, we had an emotional attachment yesterday that ISRO has failed. Actually it is not failed, they performed an experiment and it was missed by a minutest margin, but still 95% of the project is going on, but still. लेकिन अब क्या हुआ, अब लोग भूल गए. आज कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं है, अब कल तक तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे. लेकिन यही अब आप सोचो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, यही आपकी टेलीफोन कनेक्टिविटी या रोड कनेक्टिविटी ख़राब हो जाती, लेट्स से विद द कैपिटल मुंबई पुणे का रोड, अगर देखो ट्रांसपोर्टेशन ख़राब हो जाएगा तो whom you will go? You will go to the local administration ना, you will go to, and that is, और आप एज अ सिविल रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आप कोशिश करेंगे कि आप कंसर्न भी होंगे. अगर आप कोशिश नहीं कर रहे होंगे तो आप न्यूज़पेपर में देखेंगे ज़रूर, दिन में एक बार न्यूज़पेपर में, और अब तो एन नंबर ऑफ टाइम्स ऑन सोशल मीडिया एंड अदर ग्रुप्स कि क्या ये कनेक्टिविटी रिस्टैब्लिश हुई कि नहीं हुई. सो वी आर मोर कंसर्न एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री with the local administration, with the district administration, and I believe that needs to be reformed. Police administration needs to be reformed. एक आइडियल वेलफेयर स्टेट वो होता है जहाँ एक आम सिटीज़न को पुलिस को देख के डर नहीं, द सिटीज़न शुड फील सेफ. बट अनफॉर्चुनेटली माइंडसेट उल्टा है हमारे यहाँ. हमें आज भी पुलिस को देख के डर लगता है. आई डोंट नो, मतलब डर नहीं लगता है, हम कॉशियस हो जाते हैं. क्या पुलिस नेगेटिव इमेज है, इस चीज़ में कोई शक नहीं है. अब नेगेटिव इमेज होगी भी क्यों नहीं यार. वो ट्रैफिक कांस्टेबल जो खड़ा है सिग्नल पे, है ना, इट्स रॉन्ग. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभी भी वो एक कॉलोनियल इमेज, व्हाट यू वर सेइंग, कि वो पुलिस है तो डरना है. क्यों? क्योंकि जो हमारा पुलिस सिस्टम इवॉल्व हुआ वो कॉलोनियल प्रैक्टिसेस से इवॉल्व हुआ, और वहाँ पुलिस का काम वेलफेयर नहीं था. पुलिस वॉज देयर टू पनिश द पीपल, पुलिस वॉज देयर टू थ्रेटन द पीपल इफ़ यू विल नॉट फॉलो द लॉज. बट नाउ वी आर अ वेलफेयर स्टेट, एंड दैट इज़ वेयर, जो हम कल भी बात कर रहे थे, आज भी हमने कहा कि हम कहीं ना कहीं उस चीज़ में पीछे रह गए कि जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म या एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टर बिल्डिंग हमें करनी चाहिए थी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, समवेयर उसका इंडियनाइजेशन होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया. बिकॉज दे मे हैव चेंज द नेम फ्रॉम ICS to IAS, बट स्टिल they have we have failed as a country, or as a democracy, we have failed to put that character into the services. I believe that when you people will come into services, when you will become bureaucrats, अब जो एक नई जनरेशन आ रही है शायद वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाए. But still bureaucracy, political nexus is something which is widely visible, बट धीरे धीरे कम होगा, नो डाउट. देखो हर चीज़ वही कल का ना, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, उसे बदलने में वक्त लगेगा. हम सोचें कि एक इंसान झंडा लेके चले और देयर इज़ अ वाइप आउट ड्रास्टिक चेंज इन द कंट्री, नहीं. व्हाट नेहरू अडॉप्टेड वाज करेक्ट, बिकॉज द कंट्री इज सो ह्यूज दैट द चेंजेस विल बी स्लो, एंड स्लो चेंजेस आर ऑलवेज इफेक्टिव. बिकॉज इफ़ यू हैव टू कैरी बात, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ. एक बहुत अच्छी चीज़ अगर है ना, अगर एक बकेट में साफ पानी लो, एंड इफ विल पुट 2 drops of ink in that, that is visible and that will change the color immediately. Just 2 drops or few drops of ink. But if opposite is there, that there is a bucket full of dirty water and you try to put in fresh water, that fresh water will disappear. That will not change the character immediately. You have to continuously keep on the replacement of water, that dirty water by clean. That is a longer process. On the other hand, if there is a clean water,
2 बूंद भी डालोगी तो वो विजिबल होगा। यही ना एक अच्छी प्रैक्टिस और बुरी प्रैक्टिस। हमें एक स्पॉइल्ड कंट्री मिली है, मतलब हम बुरे नहीं हैं, लेकिन हम जो थे, जो हमें एक स्पॉइल्ड कैरेक्टर मिला था, एक स्पॉइल्ड स्केलेटन मिला था, हमें उसको बदलने में क्योंकि हम उसको रिप्लेसमेंट करना है ना, टाइम लग रहा है। वी शुड गिव दैट ड्यू टाइम टू अ कंट्री। बट हाँ, थोड़ा सा अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं, उसके इंडियनाइजेशन की ज़रूरत है, तो दैट रिक्वायर्स टाइम। फाइन, नाउ वी कम टू सम प्रॉब्लम्स जो अभी भी हैं, कंटेम्प्रेरी इशू में भी चल रही हैं, लेकिन इनकी रूट जो है वो इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री। हम उसको एरा के हिसाब से नहीं पढ़ सकते, हमको उसे वन प्रॉब्लम एज अ होल। द फर्स्ट थिंग इन दिस इज द प्रॉब्लम इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ? द सेवन सिस्टर्स, बाय 1980s 7 states were formed. इनिशियली जब देश आज़ाद हुआ था तो एक्सेप्ट आई बिलीव मणिपुर एंड त्रिपुरा, जितना नॉर्थ ईस्ट था सारा आसाम के अंदर आता था। एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा, जितना नॉर्थ ईस्ट था वो सारा आसाम के अंदर आता था। ठीक है, देयर वाज ओनली वन स्टेट। लेकिन वहाँ नॉन एसमीज पीपल भी थे, वहाँ नॉन एसमीज पीपल भी थे जो बार बार डिमांड कर रहे थे कि हमें वी नीड अ सेपरेट कैरेक्टर, वी नीड अ सेपरेट आइडेंटिटी एंड वी आर नॉट। और जब ऑफिशियल लैंग्वेज का इशू आया एंड एसमीज वाज ओनली एसमीज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट वाज टेकन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज फर्स्ट टाइम, लाइक इन 8th शेड्यूल जो फर्स्ट 14 लैंग्वेजेस थी उसमें नॉर्थ ईस्ट से सिर्फ एसमीज थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये हिस्सा हमेशा कटा हुआ रहा। If you'll see the northeast, it is connected by a very small strip of 22 kilometers to the mainland. बहुत छोटा सा है। The chicken neck. Yes, and that's hardly 20-22 kilometers. उतना ही एक कनेक्शन है, बहुत ही बारीक धागे से जुड़ा हुआ है अगर हम कहें। And that region is culturally, we can say, everything, culture, tradition, लैंग्वेज, एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेनलैंड। नॉर्थ ईस्ट में जो अनरेस्ट हुआ या जो नॉर्थ ईस्ट का जो इशू है उसके 3 ब्रॉडर पार्ट्स हैं या 3 ब्रॉडर उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, क्योंकि हमने पहले पढ़ा, एज आई हैव टोल्ड यू दैट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा, होल वॉज आसाम। Everything was Assam. Everything came under Assam. मीज़ो भी, नागा भी, है ना, मेघालय भी उसमें आ रहा था। और धीरे धीरे जो उस वक्त का असम था वहाँ पे एसमीज वर्सेस नॉन एसमीज एक प्रॉब्लम अराइज होने लगा। जैसे यहाँ पे जब ऑफिशियल लैंग्वेज का इशू हुआ था तो हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी वाला प्रॉब्लम आया, और जो असम की गवर्नमेंट थी उस वक्त की, वो उन जो नॉन एसमीज थे उन्हें लगा कि ये हमारे ऊपर एसमीज कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज सब इम्पोज करेंगे, बिकॉज yesterday we spread that language is not only a mode of communication, rather it is a tool of cultural development, socio-cultural development. तो उन्हें लगा कि नहीं, ये एक बहुत ज़्यादा डेंजरस उनको लगने लगा जो नॉन एसमीज पीपल थे। तो उन्होंने डिमांड फॉर ऑटोनॉमी शुरू कर दी, डिमांड फॉर ऑटोनोमस स्टेट, कि हमें असम से अलग कर दो, वी हैव अ डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटी। सो इसी चीज़ को तो जो नॉन एसमीज थे, दिन 1960 देयर वाज अ मीटिंग विच इज़ नोन एज ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस। ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस 1960 में होती है, और वो एक ग्रेटर डिमांड उठाते हैं सेपरेट होने की फ्रॉम असम एंड और इवन नागालैंड में इतनी ज़्यादा इंसर्जेंसी थी कि उन्होंने 1951 में अपने आप को खुद ही इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया, दैट वी आर नो मोर अ पार्ट ऑफ इंडिया। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रॉब्लम को सेटल करने लगी। अब होता ये भी था ना कि अब वो दिल्ली से कुछ चल रहा है, वो पॉलिसी जब गुवाहाटी पहुंचती थी और वो फिर जब फर्दर पर्कुलेट होनी चाहिए थी, उसमें लैग आ रहा था। ये हमारे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कहीं भी पॉलिसी मेकिंग में हमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन जब पॉलिसी इम्प्लीकेशन की बात आती है, जब उस प्लान के एग्जीक्यूशन की बात आती है, तो यस वी फेल, समवेयर वी फेल। आप मनरेगा में देख लीजिए, मतलब देयर आर मेनी केसेस
कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है। क्यों? जब तक डीबीटी नहीं था तब तो और ही करप्शन होता था। अब ये होने लगा है कि वो फेक, मतलब मेनी केसेस वर देयर रिपोर्टेड कि वो मतलब फेक नाम से और जो वो कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी है वो अपना पैसा खा रहा है। ये चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ पे ऑल जो हिल लीडर पार्टी, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस होती है और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि बाय 1980s 20 साल लगे। देखो अभी भी एक दिन में नहीं हुआ कि एक दिन आया ये हिल लीडर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी डिमांड रखी और फटाक से बिल्कुल सारी चीज़ें चेंज हो गई। हुआ बाय 1980s the 7 states were formed. By 1980s you can say that Nagaland was formed in 1960. Okay, Meghalaya, Manipur and Tripura were recognized as got their statehood. They were there but they were there as UTs. They got their statehood in 1972 and the rest, that is Arunachal and Mizoram, in 1986. तो ये जो आज का फॉर्मेशन है नॉर्थ ईस्ट का, द 7 सिस्टर्स का, वो उसको बनते बनते 1986 तक, मतलब लेट 1980s में जाके जो आज का 7 सिस्टर्स का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो निकल के आता है। तो एक पहला इशू था वहाँ पे the problem of or the demand for autonomy. बोडो और बोडोज़ ने भी कहा, जो असम में रह रहे थे, कि हमें वी नीड अ सेपरेट ऑटोनॉमस। और भी ट्राइब्स थी, कार्बी, दिमासा, ये सारी ट्राइब्स थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी ना कि हर किसी को दे देंगे तो वो उतनी बड़ी, नागा इज़ अ बिगर ट्राइब। उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे स्टेट्स कैसे सर्वाइव करेंगे, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जनरेट की गई बोडोज़ के लिए, कार्बीज़ के लिए। दार्जिलिंग में भी आप देखेंगे तो बोडोलैंड की, वो बोडोलैंड की बात करते हैं, लेकिन अब वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट उन्हें मिल गया है, वेयर दे हैव बीन गिवन अ ग्रेटर पावर, वेयर दे हैव बीन गिवन अ ग्रेटर ऑटोनॉमी, सो दैट they can preserve their own culture and tradition. दूसरा इशू जो नॉर्थ ईस्ट में आया, ये तो हुआ ऑटोनॉमी की बात। दूसरा जो इशू आया वाज द सेसेशन मूवमेंट। कई ऐसे मूवमेंट चले जिन्होंने कोशिश की कि हम इंडिया से अलग हो जाएं। लाइक हमने अभी नागाज को डिस्कस किया, दैट नागालैंड ट्राइड कि वो डिक्लेयर देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट इन 1951 एंड देन देयर वाज अ मीज़ो के साथ भी प्रॉब्लम था। मीज़ो सेड दैट वी वर नेवर अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हैंस हमारा इंडियन यूनियन से कोई लेना देना नहीं। ऑल्दो इट वाज अ पार्ट, इट वाज केप्ट इनसाइड इंडिया। तो उन्होंने कहा कि जब हम ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट नहीं थे तो हम इंडियन यूनियन में क्यों आए। और इसी चीज़ को वो हमेशा से चाह रहे थे कि वो अपने आप को इंडिया से अलग कर लें, और इसी ग्राउंड्स पे एक पॉलिटिकल फ्रंट बनता है। पहले इट वाज अ मिलिट्री फ्रंट, मतलब मिलिटेंसी वाला एक पार्ट था, एंड दैट इज़ मीज़ो नेशनल फ्रंट। एंड इट वाज लेड बाय लाल डेंगा, हिज नेम वाज लाल डेंगा। हाँ, और और एक और चीज़ हुई, मीज़ो वाज इट वाज एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट अंडर आसाम। 1953 और 54 देयर वाज अ फेमाइन इन दैट मीज़ो रीजन, और जो असम की गवर्नमेंट थी इट फेल्ड समहाउ, इट फेल्ड कि वो उस फेमाइन को उसको टैकल कर पाते। मीज़ोस फेल्ड कि यार ये तो हमें, एक तो लैंग्वेज भी इनकी ऑफिशियल असमीज़ हो गई है, हमारी लैंग्वेज को इतना वेटेज नहीं मिल रहा है, एंड उसके बाद ये फेमाइन में भी ये इतने ज़्यादा हमारा उन्होंने हमारा ध्यान नहीं दिया। तो इसके बाद करीब 2 डेकेड्स, ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स, MNF ने, मीज़ो नेशनल फ्रंट ने एक गोरिल्ला वॉरफेयर और मिलिटेंसी और ये वाला, इवन दे गॉट सपोर्ट, क्योंकि तब बांग्लादेश बना नहीं था, दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, और वो वहाँ चले गए, जो इनके लीडर्स थे वो एग्जाइल में चले गए ईस्ट पाकिस्तान में। बट समहाउ व्हेन राजीव गांधी गवर्नमेंट केम, दे साइन अ पीस अकॉर्ड विद देम, और उन्होंने कहा कि आप पॉलिटिकल उसमें आइए। और after that peace accord, those leaders who were in exile, they came back, and then Mizo National Front became politically active. उन्होंने अपना ये militancy वाला part उन्होंने छोड़ा, and they became politically active, and they took part in democracy, they took part in election, and they are still, Mizo National Front is a leading political party in that region. So this is how एक अलग होने का एक movement था, यही नागाज के साथ हुआ।
that I told you yesterday, that how Nagas के साथ हमने एक peace accord sign किया है, Nagas were brought into the mainstream, and आज के time पे Mizoram is one of the most peaceful region in northeast, because उनको एक proper political solution मिला, उनको एक proper political solution मिला. तीसरा इशू जो contemporary बहुत बड़ा इशू बन गया was movement against outsiders, and which is the precursor or which is in the root of what we today known as NRC. असम में क्या हुआ? 1979 में एक असम मूवमेंट शुरू हुआ. एक्चुअली 1971 we saw a huge influx of refugees, और असम वो सब जाके उनको असम, बंगाल, यहाँ वहाँ सारे रेफ्यूजीज़ जो हैं वो सेटल होने लगे. अब कुछ लोकल्स ने भी उनकी मदद की इन मेकिंग राशन कार्ड्स एंड ऑल, एंड समहाउ दे स्टार्टेड, मतलब वो कहना चाहिए कि रेफ्यूजीज स्टार्टेड लिविंग एज द नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री. देयर वर इंसिडेंसेस, और इसके अगेंस्ट असम मूवमेंट शुरू होता है 1979 में कि ये आउटसाइडर्स को आप बाहर करिए, ये इन आउटसाइडर्स को आप बाहर करिए. इसकी शुरुआत 1979 में ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन है ना, वो बनती है और वो इस मूवमेंट को कैरी ऑन करती है, और 1985 तक 6 साल तक. फिर अगेन राजीव गांधी एरा वाज दिस वाज द पीरियड ऑफ राजीव गांधी. ही केम, वो बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, और वो इंश्योर करते हैं कि एक काम करिए, आपकी मिलिटेंसी और ये जो वायलेंट वाला जो पाथ है इसे छोड़िए, यू कम, वी विल कम इन पीस. हम इंश्योर करेंगे कि ये जो भी आउटसाइडर्स हैं, उनकी डिमांड यही थी कि जो भी आउटसाइडर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट किया जाए. जो भी स्पेशली जो बंगाली मुस्लिम्स थे, उनका जो मेन टारगेट था वो बंगाली मुस्लिम्स थे, कि जो बंगाली मुस्लिम्स हैं जो बांग्लादेश से मतलब 71 के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिया में आ गए थे, आसाम में आके सेटल हो गए, उन्हें आप आइडेंटिफाई करिए और उन्हें आप डिपोर्ट करिए. दिस वॉज देयर डिमांड एंड दिस वॉज ठीक है, बोले फर्स्ट वी कम यू नो. और इसी के साथ जितने जो दूसरे और छोटे दूसरे यूनियंस बने थे, इन 1985 दे ऑल केम टुगेदर एंड फॉर्म आसाम गण परिषद, AGP. पहले AASU था और उसी को फिर फर्दर AGP में. एंड दिस इज़ वेयर, देखो ये प्रॉब्लम 1970s के बाद से वो बहुत ज़्यादा थे, और ये जो NRC आज जो हम देख रहे हैं, ये इसका रूट वहाँ पे, दैट आसाम मूवमेंट जो 1979 में शुरू हुआ. दैट्स व्हाई व्हेन आई एम टीच पोस्ट इंडिपेंडेंस, आई ऑलवेज टेल कि ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए, लेकिन कई ऐसे कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं जिनका रूट आपको मिलेगा पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में. दैट्स व्हाई थोड़ा, और दूसरा आज के पॉलिटिकल सिस्टम को भी. तो जो बेसिकली ये जो NRC हुआ है, ये इसीलिए था कि जो आउटसाइडर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें डिपोर्ट किया जाए. लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई है ना कि ये बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया है, फ्रॉम 1970s टू 2019, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, है ना, 50 साल हो गए करीब. और इन 50 साल में हम, एंड ऑफ द रिकॉर्ड आई कैन से दैट इस देश में आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. मतलब देयर आर मेनी इंस्टेंसेस न्यूज़ में देखते हैं कि एक आदमी के पास 2 आधार कार्ड हैं, ऑल्दो इट्स बायोमेट्रिक, इट विल नॉट रिसीव, बट पॉसिबल है. पासपोर्ट और ये और वो फेक पासपोर्ट के चक्कर में कितने लोग एयरपोर्ट पर डिपोर्ट हो जाते हैं. मतलब फेक पासपोर्ट बन रहा है ना, प्रॉब्लम तो है. अब 50 साल में उन्होंने इतने डॉक्यूमेंट्स कर लिए, ज़मीन खरीद ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया. सो दिस NRC इज़ फेसिंग रेजिस्टेंस. If this would have been done in 1980s only, then this was an effective measure. लेकिन तब किया नहीं. तब करते तो तब शायद हम easily identify कर देते who is an outsider and who is not. लेकिन 50 साल में तो 2 generations आ गई. अब हो सकता है कोई ऐसा हो जो उस टाइम पे यहाँ नहीं हो, उसके ग्रैंडफादर ने कुछ बना लिया हो, आज आफ्टर 50 years he is having all the documents. सो आज का जो ये NRC का इशू है, इट रूट्स वे बैक टू द असम मूवमेंट ऑफ 1979 टू 6 साल करीब ये ब्रॉडर मूवमेंट चला. उसके बाद दे केम फॉर अ पॉलिटिकल सोल्यूशन, AGP केम इनटू द पावर, और उनका टारगेट यही था कि हम आउटसाइडर्स जो हैं, स्पेशली जो बंगाली मुस्लिम्स जो ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आए इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करके
डिपोर्ट करें. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स इन नॉर्थ ईस्ट. आप कहेंगे इंसर्जेंसी बिल्कुल थी, लाइक MNF दे फॉट फॉर 2 decades, तो 2 decades. नागाज दे ऑल्सो फॉट, बोडोज दे ऑल्सो फॉट. तो नॉर्थ ईस्ट हमेशा से डिस्टर्ब. यस सर, अगर ये नागा और बोडोस आसाम के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, आसाम गवर्नमेंट के, तो जो आसामीज लोग हैं अल्फा वाले, वो किसके अगेंस्ट थे? वो आप देखेंगे जैसे असम में वो इनके अगेंस्ट थे, वो आपस में भी तो लड़ रहे हैं ना. वो तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे ना, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे. देखो ट्राइबल रीजन जहाँ भी होगा वहाँ पॉलिसी मैटर्स परकुलेट नहीं हो पाते. जैसे हम खुद अभी हमने एक बात की, व्हाट ही वाज सेइंग, कि हम यहाँ आए हैं, हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम सिविल सर्विसेज को नज़दीक से देख रहे हैं, तो हमें रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी पॉलिसीज़ बनी हैं. थिंक ऑफ अ ट्राइबल रीजन. और अब ऐसा आपको पता चला यू बिलोंग टू अ ट्राइबल रीजन, अब आपने पता अरे ये है, एंड यू विल गो एंड यू विल मोटिवेट योर पीपल, योर ट्राइब, कि यार हमारे साथ ये होना चाहिए था, हमें नहीं मिल रहा है. बीइंग इन विसिनिटी टू द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, इफ विल सी बंगाल, अभी हम बंगाल को भी पढ़ेंगे कि वहाँ कैसे कम्युनिज्म राइज हुआ. बीइंग इन विसिनिटी टू द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड और एक और चीज़ है ना, वो जो चिकन नेक वाला प्रॉब्लम है, वो इतना छोटा सा स्ट्रेच ऑफ मेन लैंड से कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, है ना. तो वो एक हमेशा रहा कि आप ये भी देखेंगे, जैसे आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे, बस्तर रीजन है, वहाँ नक्सलिज्म इतना है. उड़ीसा महाराष्ट्र का जो ट्राइबल गढ़चिरौली वाला रीजन है, वहाँ पे नक्सलिज्म है. क्यों? एक्सटीरियर में है बहुत, इंटीरियर बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, पॉलिसीज़ जो हैं वो कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक लिमिटेड है, वो उसे आगे ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं. किसी को पता चल जाएगा तो गुस्सा तो आएगा ना कि हमें इतने सालों से हमारा ये हक मिलना चाहिए था, नहीं मिला. और अगर इफ दैट आइडियोलॉजी इज इंस्पायर्ड बाय गन और बुलेट rather than ballot, obviously that will lead to a militant extremism. This was the the root. अभी हम बंगाल का जो नक्सल प्रॉब्लम है, स्टार्ट वहीं से होता है, वो स्टार्ट वहीं से होता है. सप्रेशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोअर क्लास. फाइन. सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्थ ईस्ट. दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्थ ईस्ट. अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट से बंगाल की तरफ. बंगाल, कभी एक बात बताओ, if I'll ask you, why Bengal has always been the strong, not now from past few years, but almost for 40 years, for 4 decades, it remained a fortress of communist ideology in India. Why? Because Britishers first of all tried the communist policies in Bengal in 1905 when they divided them on the basis of Bengal. I am not talking about communal. I am talking about the communist ideology, the leftist ideology. 35 साल ऑलमोस्ट CPI की गवर्नमेंट रहती है वहाँ पे, है ना. ज्योति बसु was the longest serving chief minister. After that बुद्धदेव भट्टाचार्य came. So इतना लंबा स्ट्रेच कोई उन्हें हटा नहीं पाया, and people all were always in support of the communist ideology. Why Bengal? Now see, one more thing, if you want to get successful in UPSC now, start questioning everything you see. Why this is so? और क्योंकि और इसका जवाब भी खुद ही ढूंढना है. जब ये ब्रेन आपका आप मेंटल लेवल पर जब इस तरीके से काम करने लगेंगे ना, यू विल गेट मेनी आंसर्स एंड यू विल सर्च दोज डायमेंशंस जो एक आम तौर पे आप नेग्लेक्ट कर रहे थे. Why this is happening? Like अभी हम अगर बहुत रिसेंट बात करें तो इसरो एक पार्ट होगा जो डेटा कलेक्ट कर रहा होगा ऑर्बिटर से, लेकिन एक पार्ट एक टीम होगी जो सिर्फ ये कर रही होगी why we failed. Why we failed? Why is more important. How something has happened, why something has happened, what is going to be. So इस चीज़ को जब तक आप खुद नॉर्मल लाइफ में, मतलब फॉर योर प्रिपरेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
See, if you'll see the British policy, especially that of permanent settlement or zamindari, it was that zamindari system was very extensively deep rooted in Bengal. वहीं से वो शुरुआत होती है और वो बहुत ज़्यादा डीप रूटेड होता है। कांग्रेस को वहाँ आप देखेंगे इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है इनिशियली भी। That's why they shifted. Calcutta ठीक है, Calcutta was a center of revolt initially, but when capital was shifted to Delhi, तो leaders from Punjab, Maharashtra, UP, Delhi, ये लोग initially आप देखेंगे that is the Bengali leaders who are leading, है ना। चाहे अगर आप extremism भी देखेंगे, चित्तगोंग conspiracy, है ना, सुभाष चंद्र बोस, तो I cannot say militancy, but yes, an aggressive आइडियोलॉजी वो बंगाल से निकल के आती है। लेकिन जब आप देखेंगे 1912 के बाद जब कैपिटल शिफ्ट होती है दिल्ली, ऑल ऑफ अ सडन बंगाल को नेग्लेक्ट होने लगता है। कई ऐसे लीडर्स हुए जो कि बंगाल के अंदर, दोज हु वर इंस्पायर्ड बाय द मार्क्स और लेनिन, देयर आइडियोलॉजी। और आप अगर भगत सिंह को भी देखेंगे, सरदार भगत सिंह ऑल्सो वेंट टू बंगाल to gain support because he was not getting that much support from northern part of India. तो एक रीज़न ये हुआ कि वहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, वो प्रोपगेट करने लगी धीरे धीरे आज़ादी के नेशनल मूवमेंट के दौरान भी। इफ़ यू विल सी द मूवमेंट ऑफ सुभाष चंद्र बोस ऑल्सो, तो एक तो ज़मींदारी सिस्टम, तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड था। पहले किसान के पास बहुत पैसा आता था, जब ज़मींदारी आ गई, जब ज़मींदारी इम्प्लीमेंट कर दी गई तो उनका पैसा जो है वो, और इसी का इम्पैक्ट था दैट बाय 1967 कांग्रेस लॉस्ट ऑल इट्स ग्राउंड इन बंगाल। यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनती है विद द सपोर्ट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन इसी दौरान 1960s में ही एक आंदोलन शुरू होता है, जो हमने माओइस्ट और मार्क्सिस्ट की बात की थी। उनको लगता है हमारा हक, ये ज़मींदार जो हैं वो हमारा हक नहीं ले रहे हैं, और पॉलिटिकल सॉल्यूशन में उनको पहले लगा था कि वो सीपीआई जो पार्टी है उसको, लेकिन नक्सलिज्म स्टार्टेड टू अपीयर एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ सीपीआई, द कम्युनिस्ट पार्टी विच वाज इन द पॉलिटिकल अरीना। उसका लोगों को, एक आम आदमी को देखो जल्दी सॉल्यूशन चाहिए। कई बार देखा होगा ना, वो मूवीज़ में दिखाते हैं कि लोग पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं, बट एक गॉडफादर टाइप ऑफ कैरेक्टर के पास जाते हैं। हाँ, रियल लाइफ में होता है यूपी में आप देख लीजिए, राजा भैया को देख लीजिए, मुख्तार अंसारी को नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर डूइंग फॉर द पीपल। आई एम नॉट मैं उनको कोई हेरोइक वो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी ये हो रहा है। क्योंकि समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड कि जब आप बहुत ज़्यादा सप्रेस होते हैं ना, कि अब लड़ जाओ, क्योंकि जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता वो सोचते हैं अब क्या है, पुलिस से तो कुछ मिल नहीं रहा है। दैट इज़ द रीज़न हम जो बात कर रहे थे कि अभी भी आम लोगों का पुलिस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई सच बाहुबलीज आर कमिंग, आर गेनिंग पॉपुलैरिटी, क्योंकि वो इमीडिएट सॉल्यूशन दे देते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। तो नक्सलिज्म, नक्सलबाड़ी गांव है बंगाल में, वहाँ से ये मूवमेंट शुरू होता है, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज नक्सलबाड़ी गांव से ये कहानी शुरू होती है। एंड बेसिकली इट वाज अगेंस्ट दी land, the oppression of the landlords or the zamindars over the peasants। इनिशियल यही होता है। और आज के टाइम पे आप देखोगे तो जितने स्टेट्स हैं जहाँ पे नक्सल प्रॉब्लम है, चाहे महाराष्ट्र में हो, छत्तीसगढ़ में हो, आंध्रा तेलंगाना में हो, उड़ीसा में हो, ये बेल्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब तो खैर समहाउ कंट्रोल किया है, बिकॉज जो फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ रिक्रूट्स थे वो तो लड़ गए, लेकिन जो अब नए रिक्रूट्स हैं गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि अब उन्हें, प्रॉब्लम तो यही थी ना कि वो मेन स्ट्रीम में नहीं थे, वो मेन सोसाइटी का पार्ट नहीं बन पा रहे थे बाय वन वे और अदर। नाउ द पॉलिसीज आर इन सच अ मैनर दैट दे आर बीइंग ब्रॉट टू द मेन स्ट्रीम, दे आर बीइंग ब्रॉट इन मेन लाइन ऑफ द सोसाइटी। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ख़त्म हो रहा है। लेकिन जब 1960s और 1970s की अगर हम बात करें तो वहाँ पे नक्सलिज्म जब एकदम पीक, मतलब जब बढ़ रहा था, तो सीपीआई का ऑल्टरनेटिव, कम्युनिस्ट वो भी बात कर रहे थे, दे वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सिकल एंड द हैमर, वो भी लाल सलाम कह रहे थे, है ना। लेकिन लोगों को लगा कि यार ये ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है। समहाउ सीपीआई रिवाइव्ड
एंड बाय 1977, क्योंकि 1977 में आफ्टर इमरजेंसी देयर वाज अ होल एंटी कांग्रेस वेव, और उसमें सीपीआई अपनी गवर्नमेंट बंगाल में बनाती है, और आते से ही वो एक प्रोग्राम शुरू करती है, एंड दैट वाज ऑपरेशन बरगा। इसमें उनका टारगेट ये था कि जो जोतेदार हैं, होता क्या था, एक नया क्लास ऑफ पीपल था, जोतेदार, जो ज़मींदार और जो टेनेंट है उसके बीच में था। जोतेदार कौन था? एक तो ज़मींदार था, वो ज़मींदार थोड़ी जाता था खुद, वो क्या करते थे, ज़मींदार अपने नीचे जोतेदार अपॉइंट करते थे, जो कि जाएंगे और टैक्स कलेक्ट लेंगे और उनका उसमें शेयर होता था। तो ये इंटरमीडियरी अबॉलिश करने के लिए देयर वाज ऑपरेशन बरगा। और आप देखेंगे कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स को भी बंगाल में काफ़ी हद तक कोशिश की कि लैंड रिफॉर्म्स को वो इम्प्लीमेंट कर ले, बट अनफॉर्चुनेटली ओनली अराउंड 25% ऑफ लैंड वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। जो ज़मींदारी के अंदर था उसका सिर्फ 25% ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड लोग खुश थे, वो एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे थे, वो कल्चर प्रिजर्वेंस के ऊपर काम कर रहे थे, दे वर डूइंग गुड। इवन यू नो in 1992 when the whole country was facing riots, Bengal was safe from that, even though there was a there was a very good population of Hindus and Muslims in Bengal, lekin communist government anyhow they were successful in countering the communal feelings and they stopped spreading it. सिर्फ एक पॉइंट पे आके हम कहते हैं कि बंगाल में कम्युनिज्म एज एन आइडियोलॉजी फेल होता है, एंड दैट इज़ टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को उतना प्रमोट नहीं कर पाते हैं। फॉर देम इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ सिंबल ऑफ कैपिटलिज्म। और इसलिए आप देखोगे, इफ़ यू रिमेंबर, टाटा का जब नैनो प्लांट था सिंगूर, है ना, वो बहुत बड़ा एक मूवमेंट हुआ, क्योंकि एंड देन टाटा शिफ्टेड टू गुजरात, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ बंगाल दे फेल्ड ऑन सच ग्राउंड्स। हाँ, नो डाउट दे मेंटेन कम्युनल हार्मोनी, उन्होंने एक बंगाल को एक अलग आइडेंटिटी दी, अपने आप को एज अ पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश किया। टाइम वाज देयर ओनली केरला एंड बंगाल वर द फोर्ट्स ऑफ कम्युनिस्ट्स इन इंडिया। और ऑल्सो बंगाल में बंगाल में इतना नक्सलिज्म का प्रॉब्लम इनिशियली नहीं था, स्टार्ट वहाँ से हुआ लेकिन स्प्रेड समवेयर एल्स। सो दे वर ऑल्सो एबल, क्योंकि लोगों को लगा ना दोनों बात तो सेम कर रहे हैं, ये बगैर वायलेंस के कर रहे हैं, वायलेंस के साथ कर रहे हैं। दूसरी जगह ये चीज़ एप्लीकेबल उतनी ज़्यादा नहीं थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बंगाल। प्रॉब्लम्स उन्होंने भी फेस की, वहाँ भी एक इंसर्जेंसी सॉर्ट ऑफ माहौल बना। नक्सलिज्म एक्चुअली शुरू बंगाल से होता है, लेकिन समहाउ दे एंडेड ऑन अ मोर, देखो जहाँ कहीं भी पॉलिटिकल सोल्यूशन आता है इंसर्जेंसी कम होती है। एज वेन एवर सी रेवोल्यूशन या इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी आती ही वहीं है जहाँ पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है। ऑलवेज आप हिस्ट्री में भी देखेंगे, इंडियन रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखेंगे, एक रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री का दौर आता है 1907 के बाद, कांग्रेस स्प्लिट हो गई है, सारे लीडर्स अरेस्ट हो जाते हैं, मुस्लिम लीग वाला वो हो जाता है, तो क्या होता है पॉलिटिकल वैक्यूम। 7 साल आप देखेंगे कि इस तरीके के इवेंट्स होते हैं, बॉम्बिंग्स, असैसिनेशन। फिर क्या होता है, फिर 1922 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद कांग्रेस के अंदर एक माइनर स्प्लिट होता है, द स्वराजिस्ट एंड द नेशनलिस्ट, है ना। फिर उसी दौरान मुस्लिम लीग, जिन्ना जॉइंस मुस्लिम लीग एंड कम्युनलिज्म बढ़ने लगता है। फिर एक पॉलिटिकल वैक्यूम आता है, एंड देन HRA, भगत सिंह, आज़ाद, बिस्मिल, ये लोग इमर्ज होते हैं। तो जब भी आप दुनिया में कहीं देख लीजिए, whenever there will be a political vacuum, there will be insurgency, there will be militancy, there will be revolutionary activities, and the point you get a political solution to that will come down. नॉर्थ ईस्ट में भी यही हुआ, चाहे आप मिज़ो को देख लीजिए, नागा को देख लीजिए, मणिपुर में देख लीजिए, बोडोज, उल्फास, जो आप देख लीजिए, वो पहले एक्टिव थे, क्यों? पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं थी। जैसे ही उनका पॉलिटिकल सॉल्यूशन मिलता है, they calm down. Now we come to a bigger problem, जो कल थोड़ा माइनरली डिस्कस किया था, बट इट नीड्स टू बी डिस्कस्ड, एंड दैट इज कश्मीर। यस, बंगाल का जो लोग सबसे पढ़ाई करने वाले, सबसे मेहनत करने वाले, सबसे टैलेंटेड लोग होते हैं, तो भी इतना वायलेंट उस एरिया में क्यों? क्योंकि सप्रेशन भी वहीं ज़्यादा था।
आप अगर देखें ज़मींदारी का जो एक बहुत बड़ा स्प्रेड था वो बंगाल के अंदर था, क्योंकि इट स्टार्टेड फ्रॉम उनके वायलेंस की वजह ही यही थी कि सेपरेट। जहाँ देखो सब वायलेंस इज इफ वी टॉक ऑन अ वेरी न्यूट्रल ग्राउंड, violence of such kind wherever it is happening, it's never it's the first step, it's always the reaction. आप 1857 के रिवोल्ट में भी देखेंगे कि वो ज़मींदारों के खिलाफ एक फ़ौज खड़ी हो जाती है। ऑल ऑफ अ सडन जो पीजेंट्स और ये आते हैं वो सोचते हैं ये ज़मींदार भी अंग्रेज़ों के एजेंट हैं, इनसे भी लड़ो। तो जहाँ सप्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ वायलेंस भी ज़्यादा होगा, अगर कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है तो। जैसे पॉलिटिकल सोल्यूशन मिला, उनको चूज़ करना था नक्सलिज्म में और लाइक इफिल से उन्होंने माओइज्म और मार्क्सिज्म में चूज़ करना था। दे फाइंड मार्क्सिज्म एज अ नॉन वायलेंट वे ऑफ गेटिंग सॉल्यूशन टू द सेम थिंग। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाज देयर फॉर 35 years, मोर देन दैट। अब एक जनरेशन उब गई तो उन्होंने दे फॉट फॉर चेंज। सो दिस इज बाउंड टू हैपन वेर एवर देर इज एन इंक्रीज्ड सप्रेशन। बंगाल का किसान सबसे ज़्यादा सप्रेस था, सबसे ज़्यादा। मेहनत भी वही कर रहा था और लूटा भी वही जा रहा था, क्योंकि रॉ मटेरियल्स उन्हीं से। जूट क्या होता है, जूट के साथ प्रॉब्लम क्या है, ज़मीन ख़राब हो जाती है, फिर जूट के अलावा कुछ होता नहीं है, सबमर्ज कंडीशन रहती है। इतनी मेहनत करके किसान जूट निकाल कर लाता है, वो जूट रॉ मटेरियल बन के बाहर चला जाता है और फिर जब वापस आता है बिकने तो किसान बोलता है हमने तो 100 रुपये की चीज़ बेची थी, अभी 2000 की बन के आ गई। तो ये सप्रेशन तो फील होगा ना। फाइन, नाउ वी कम टू द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर। कल थोड़ा सा हम जब नेशनल इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे जब हम, तब हमने थोड़ा सा कश्मीर को देखा। देखो कश्मीर प्रॉब्लम के या कश्मीर इशू के दो डायमेंशन हैं, एक एक्सटर्नल डायमेंशन है, एक इंटरनल डायमेंशन है। देयर टू थिंग्स व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड, वन इज एक्सटर्नल डायमेंशन, अनदर इज इंटरनल डायमेंशन। एक्सटर्नल डायमेंशन इज द डिस्प्यूट दैट वी आर हैविंग विथ पाकिस्तान, वो हमारा एक चल रहा है, लेकिन इंटरनली वहाँ कहानी कुछ और है। एक्चुअली अगर आप देखें जब आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस किया गया था तो देयर वर टू काइंड्स ऑफ पीपल इन कश्मीर। वन हु वर अगेंस्ट आर्टिकल 370 इन द मैनर, दोज हु वर प्रो इंडियन एंड दे वर अगेंस्ट आर्टिकल 370। उनका ये कहना था कि आर्टिकल 370 हमें प्रॉपर कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं देता है, इसे नहीं होना चाहिए ताकि हम वी कुड बी लाइक एनी अदर स्टेट इन इंडिया। दूसरा भी आर्टिकल 370 का अपोज करता है, लेकिन वो दूसरी वजह से करता है। उनका कहना है कि हमको एक ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए और ये आर्टिकल 370 जो था ये इस ग्रेटर ऑटोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इनिशियली वी आर टॉकिंग, आई एम टॉकिंग इन 1960s 70s की जब हम बात कर रहे हैं, जब कश्मीर और प्रॉब्लम, और वहाँ एक और वेव है विच इज़ अबाउट द कश्मीर आइडेंटिटी। दे टॉक अबाउट कश्मीरियत, उनको हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी आइडेंटिटी नहीं चाहिए। देयर इज़ अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल हु वांट कश्मीरियत एज देयर आइडेंटिटी। नाउ व्हाट हैपेंड, अगर हम देखें कि ग्रेजुअली, पहले तो हमने कुछ चीज़ों पे कहा था, लेकिन ग्रेजुअली हमने ये जो ग्रेटर ऑटोनॉमी कश्मीर को मिली हुई थी अंडर आर्टिकल 370 उसे डाइल्यूट किया। जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक्सटेंशन, सिविल सर्विसेज को इंटीग्रेट किया स्टेट सर्विसेज के साथ, इलेक्शन कमीशन, स्लोली हमने उस चीज़ को जो एक ऑटोनॉमी थी उसे डाइल्यूट किया। बट कश्मीर ऑलवेज फेस द प्रॉब्लम। कश्मीर को अगर हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आती है दैट इज़ टेररिज्म। द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक अस is what you think is the problem, why Kashmir is facing such a huge flow of terrorism or such huge incidents of terrorism? It needs to be discussed. कुछ तो बताओ। So political instability को vacuum नहीं, but there was another issue. कश्मीर में शेख अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, they were continuously contesting elections, he was prime minister and they were giving political solutions. Kashmir is a different case.
Why? What do you think is the causes of increased militancy in Kashmir? So due to the AFSPA, That AFSPA is, that is being enforced in Northeast also. Irom Sharmila किस लिए लड़ रही थी? इसीलिए तो लड़ रही थी. And when she contested election, we are such a great people that 91 votes. She got only 91 votes. But the lady who was, on a hunger strike for past more than a decade, when she came for a political solution, और नहीं वहाँ हाँ, जब अगर आप कश्मीरी पंडित्स के उनकी बात करेंगे तो यस, क्योंकि दे वांटेड अ ग्रेटर कश्मीर. और लेकिन अभी जब आप मिलिटेंसी देखेंगे तो देयर इज नथिंग लाइक हिंदू और मुस्लिम, देयर एवरीवन इज किल्ड. 1987 से 1990 में जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्लोज, दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर द इंक्रीज ऑफ नो, द शेख अब्दुल्ला वाज देयर, फारूक अब्दुल्ला वाज देयर. हाँ, नो डाउट इंसर्जेंसी की वजह से बहुत बार प्रेसिडेंट्स रूल लगा. लाइक 1987 के बाद 1996 में इलेक्शंस हुए थे कश्मीर में. 9 years देयर. और unemployment, developmental disparity and the feeling of alienation from the rest of the government, rest of the part of India. yes, one thing is there, the developmental, that they are not given equal weightage what they say, and they have a feeling of alienation from the rest of the India. Or So people were not getting the rights. So people who rights नहीं मिले. sorry, Rights नहीं मिले सर people. क्या बात कर रहे हैं, सारे राइट्स मिले. अब आप कहोगे कि वो फंडामेंटल when fundamental rights conflicts with AFSPA, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही कह रहा है ना. Opportunity नहीं मिली सर अभी people. इसलिए terrorists को उन्होंने choose किया. लोगों को हाँ चांसेस ऑफ Direct involvement of the people of J&K हाँ. when it comes to the policy making of the J&K or any issue related to the J&K. Yes, this is what again happened when abrogation of 370. Yes, least participation of the people were in, उनको जब involvement होना चाहिए था, there was a least participation amongst the people. और see, if we see Kashmir issue as a whole, एक तो जो external dimension, we are in conflict with Pakistan. There is a Pakistan occupied Kashmir. There is a part which is occupied by Pakistan. और एक external dimension है जो कि international issue. और एक और को पता है मज़े की चीज़ ये है, पाकिस्तान हमेशा से ये डिमांड उठाता रहा यूएन में कि प्लीज़ कॉल दिस कश्मीर डिस्प्यूट. और हम क्या कहते हैं? नेवर यूज द वर्ड डिस्प्यूट. वी ऑलवेज से इट्स एन इशू. नहीं, इवन इफ व्हेन इट कम्स टू पीओके ना, हम उसे कश्मीर डिस्प्यूट नहीं कहते हैं, बिकॉज व्हेन वी से डिस्प्यूट यू आर अग्रीइंग दैट समथिंग इज रॉन्ग. हम इशू कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे को सुलझा लेंगे, हम प्रॉब्लम नहीं कह रहे हैं, हम इसे विवाद नहीं कह रहे हैं, क्योंकि विवाद में तो दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है. What we say that whole Kashmir was ours and they have occupied a major part of the valley and now we call it issue. तो एक external dimension हुआ. Internal dimension क्या था? Internal dimension को अगर आप मतलब after Kashmir was integrated in India and after that if you see this problem as a whole, so ये दो लोग थे. अगर आप National Conference the party of Abdullah's आप उसे देखें तो वो हमेशा से प्रो कांग्रेस रही 87 तक, क्योंकि इवन 90s तक. और उन्होंने एक हमेशा एक प्रो इंडिया मतलब जो कश्मीरी व्हाट दे से देयर इज इंडिया इज अ फॉरेन लैंड. यस, सर ये जो कश्मीर का जो इशू है सर, ये कोई इलेक्शन हुआ था तो आई एम कमिंग टू दैट, आई विल कम टू दैट. हुआ क्या? देखो, दो एक बहुत बड़ा रीज़न है कश्मीर में मिलिटेंसी स्पेशली 90s में बढ़ने का. पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन चल रहा था 50s के बाद से ही, क्योंकि हाफ ऑफ द कश्मीर
इज़ ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, तो वहाँ से घुसपैठ जारी थी जो धीरे धीरे लोगों को आज़ादी और कश्मीरियत और पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान, एंटी इंडिया, ये सारी बातें वो लोग कर रहे थे और छोटे छोटे इंसिडेंट्स चलते रहे 70s तक। 70s के बाद व्हेन इंदिरा गांधी केम देयर वाज सर्टेन, तो जब ये वाली सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई, ये मतलब कश्मीर को और फर्दर जो हम कह रहे थे ना ग्रेजुअल डाइल्यूशन ऑफ ऑटोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं, होता क्या है 1980s पंजाब में इंसर्जेंसी थी, हम नॉर्थ ईस्ट को सॉल्व करते हैं, श्रीलंका का प्रॉब्लम चल रहा था, सब कुछ था, और उस दौरान कश्मीर में इलेक्शंस डिक्लेयर होते हैं 1987 में, और वो टर्निंग पॉइंट है कश्मीर की हिस्ट्री का। अगर वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर, उसमें क्या हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग विद कांग्रेस इमर्ज्ड as victorious and were very, and they what came as they were like elected like anything. लेकिन जो पॉपुलर वोट था वो इसके अगेंस्ट था। देयर आर क्लेम्स कि दीज इलेक्शंस वर रिग्ड, क्योंकि जो लोग थे जो इलेक्शन लाइक दिस ऑल द सेपरेटिस्ट लीडर्स, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है और ये JKLF है, ये सारे उस इलेक्शन में थे। उनको लग रहा था कि हम लोगों की, दे वर ऑल यंग लैड्स फ्रॉम स्टूडेंट्स यूनियन एंड स्टूडेंट लीडर्स थे, and they always like even that Maqbool Butt who is being so infamous, वो सब बनना चाहते थे डेमोक्रेसी का पार्ट। सलाउद्दीन दैट जैश मोहम्मद वाला है ना, वो खुद इलेक्शन लड़ा। दिस यासीन मलिक वाज हिज काउंटिंग एजेंट। मतलब दे हैड अ ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल, बिकॉज दे नेवर वांटेड टू लूज पावर, व्हाट दे क्लेम इज द इलेक्शन वाज रिग्ड। उन्होंने इलेक्शंस को पूरा बैलेट जो भी अब करके, मैनिपुलेशन कह लो, बूथ कैप्चरिंग कह लो, जो भी करके सारा इलेक्शंस अपने फेवर में किया, एंड ऑल ऑफ अ सडन दे ऑल टर्न्ड, बोले यार ये डेमोक्रेसी में आके फ़ायदा नहीं। दे ऑल टर्न टुवर्ड्स मिलिटेंसी। दे ऑल नॉट, वी कैन नॉट कॉल दैट मिलिटेंसी, दे ऑल टर्न टुवर्ड्स द सेपरेटिस्ट मूवमेंट, बिकॉज जहाँ अगर वो इलेक्शन उन जो रियलिटी थी कि लोगों का सपोर्ट जिन्हें था वो जीतते, वो गवर्नमेंट फॉर्म करते, तो शायद कश्मीर के एक जो हम इमोशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं उस तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थिंग्स वेंट द अदर वे। एक और इंटरनेशनल इवेंट हुआ, हम अभी रशिया के बारे में, सोवियत यूनियन के बारे में पढ़ रहे थे, हम अमेरिका क्रिएटेड ऑल दिस, तालिबान, अलकायदा, ये वो, तो ये लोग वहाँ लड़ रहे थे, वो वॉर ख़त्म होता है, बोलते हैं अब हम क्या करें। ऑल those you know टेररिस्ट कह लो या फाइटर्स कह, जो कहना कह लो, दैट्स योर चॉइस। वो लोग कहने लगे कि अब हम क्या करें भाई, व्हाट वी डू नेक्स्ट। एंड देन बिकॉज एज यूजुअल पाकिस्तान इज प्रो US, पाकिस्तान यूज दोज हु वर यू नो, जो वहाँ से खाली हो गए थे अफगान सोवियत वॉर के बाद, खाली जो हो गए थे, बोले क्या करें, बोले आ जाओ, वी आर गिविंग यू फ्री पैसेज कश्मीर। और इसीलिए आप देखेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर 1987-88 देयर इज एन इंक्रीज इंस्टेंस ऑफ मिलिटेंसी इन कश्मीर। वो तो ट्राइबल था, हर कोई था ट्राइबल, वहाँ तो ट्राइब्स ही ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स को यू बैक फ्रंट, बैकयार्ड में तो पाकिस्तान था ना, उन्होंने फ्रंट, क्योंकि अभी वो नया नया मुल्क बना था, मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पे ये नहीं दिखाना चाह रहा था दैट वी आर यूजिंग अ रेगुलर आर्मी, बट दे ऑल वर ट्रेंड। दिस इज, नो वन कैन डिनाई दैट ऑल दीज पीपल हु आर क्रिएटिंग वायलेंस इन कश्मीर, और all those who are responsible for violence in Kashmir, they are getting all their aid and support from Pakistan. All their training is done there. वो कोई माने चाहे मत माने, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान कभी थोड़ी कहेगा कि हम ये कर रहे हैं, बट इट इज़ देयर। वो उन्होंने 80s में उन लोगों को फ्री पैसेज दिया, एंड ऑल ऑफ अ सडन there's a very huge wave of militancy in कश्मीर। ये वही दौर था जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, बिकॉज दे सेड दैट वी वांट अ ग्रेटर कश्मीर, अब हम आज़ाद होंगे। आज़ाद कुछ नहीं हो रहे थे, वो उन्हें पता था कुछ नहीं होगा, बट ऑल टाइम दे हैव टू। सो in 1989 the militancy for separate Kashmir, for Kashmir as a separate nation started,
ठीक है. अब उसके बाद बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं. देयर आर मैनी क्लेम्स दैट आर्मी हैज़ पुट एट्रॉसिटीज़ ऑन देयर आर मैनी क्लेम्स दैट मिल, तो वो हम उसमें नहीं पढ़ेंगे. लेकिन if I say that even see, this is also reality that even after abrogation of Article 370, even after that will became a union territory, the problem of militancy in Kashmir is not solved yet. Still, we are unable to emotionally integrate them that yes, you are a part of our country. प्रॉब्लम एक मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी. लोगों को कश्मीर तो चाहिए लेकिन कश्मीरी से प्रॉब्लम है. We say that Kashmir is an integral part of India, but unfortunately you don't accept a Kashmiri that well. Those who are saying. I have studied when my room partner was a Kashmiri for almost 3 years. And what I have learned from, if it is true, that's really, the condition is really bad. So we, अब मैं अगर आपसे पूछूं, आप इंटरव्यू में हैं, कि what is the solution to the problem of Kashmir? मिलिटेंसी है, एक सेपरेटिस्ट थॉट वहाँ पे प्रोपगेट हो रहा है ना. वहाँ का यूथ पत्थर उठा रहा है. अभी स्कूल्स खुल गए लेकिन कोई स्कूल में नहीं जा रहा है. कॉलेजेस खुल गए, कॉलेज में नहीं जा रहा है. तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? यू आर अ ब्यूरोक्रेट. आइए, अब तो सब उधर जाएंगे, अब तो यूटी हो जाएगा. हाउ? देयर इज नो प्रोविजन ऑफ प्लेबिसाइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट्स नॉट अबाउट प्लेबिसाइट. इट्स अबाउट you have to, we will never leave our land. Kashmir is a part of India and it will always remain a part of India. We'll never leave our land. But problem is political integration तो आपने कर लिया. आर्टिकल 370 उन्होंने 70 साल दिया, उसके बाद उसे हटा के आपने एक उनको दूसरे स्टेट्स के जैसा स्टेटस दिया, ठीक है. लेकिन इन सब से क्या वहाँ के लोगों के दिलों में जो एक नफरत है, जो है, वो प्रॉब्लम में है. अगर एज कोटेड बाय देम, हम उन्हें इमोशनली इंडिया का पार्ट क्यों नहीं बना पाए? और नहीं बना पाए, दैट्स ट्रू. हम कैसे बना सकते हैं? द क्वेश्चन इज दिस. Basic importance is the good infrastructure changes for the particularly in the education sector. Second important thing being the economic prosperity that would eventually bring in more of employment opportunities, and that's it. So these things would be like a driving force when it comes to the social revolution in integration of Kashmir with the India. As we have said that we have done with the political integration, but the social integration will eventually start with the objective education that would be imparted. Okay. Yes, what he's saying, that's first bring them in mainstream, first through education and by providing them economic infrastructure. The what I don't want anyone to be offended about the challenges. Just the issue of Jammu Kashmir is similar to the issue of one of the unsatisfied partner in the married life, who is not happy with his or her counterpart, but is eventually getting influenced by some other external forces. But even it knows that it will, at the end of the day, will get exploited if it goes to the counterpart. So what the solution of this problem is to give more prosperity, more development, and whatever the regional demands are. So, do you believe that this abrogation of Article 370 will solve this problem? Abrogation, yes. In a term, yes. But what feeling we are giving to the people of Kashmir when it comes to the mechanism which has been used to dilute the Article 370, I feel that has become some certain things pretty difficult. Again, we are not dealing with the thing that they are feeling alienated from the main course of the India. And again, if you are taking policy without even considering their own people, it's like again pinching them in the head. Okay. Yes. Sanjay, what is one of the solution to integrate them with us, with the various policy makers? Like. For example, take DD News as a medium. They reach to so many villages from that area and propagate our various government schemes. Various DMs also integrate with the them. That is going to work in the upcoming years also. Okay. So like India preserves the cultural aspect of
of northeast, we can do the same in the Kashmir. नहीं, that always happens. There is always some kind of cultural literary festival focused on Kashmir. This is going on since long. देखो, you when you will appear for your exam na, at that point of time Kashmir will be union territory. Remember this. You may get a posting in Kashmir, no problem. पहले भी मिलती थी लेकिन अब तो और ईज आउट हो गया है ना. सवाल ये है कि आप वहाँ के लोगों को इमोशनली या एक मेंटल लेवल पे, देखो एक चीज़ होती पॉलिटिकल बाउंड्रीज को रिडिफाइन करना, जो हुआ ठीक है, लेकिन क्या इससे वहाँ के लोगों का जो उनके दिलों में अभी भी एक सवाल है कि हमारे साथ क्या होगा, हम कौन हैं, उनके वो ये सवाल हमेशा पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं. हमसे तो वादा किया गया था कि मिलिट्री एक्शन जैसे ही टेम्प्रेरी ख़त्म होगा हमें प्लेबिसाइट मिलेगा और हमें पूछा जाएगा कि आप किधर जाना चाहते हैं. दे आर नॉट इमोशनली विथ यू. दे गो टू कश्मीर विल फाइंड, लिखा होता है गो इंडिया गो बैक, लिखा होता है, शटर्स पे लिखा होता है. आर्मी इज़ नॉट ट्रीटेड वेल, वी आर ट्रीटेड एज फॉरेनर्स. हो रहा है ना. If you'll see the problem, the exile that Kashmiri Pandits have faced, that was a part of, that was an impact of militancy in Kashmir because they demanded a greater Kashmir. How you will emotion? I mean, this is a question. This is a bigger question. Yes. सर अभी तक जो उनकी अपब्रिंगिंग हुई वो सेपरेटिस्ट इन्फ्लुएंस थी, ठीक है. जो अब्रिवेशन का इंटेंशन था गवर्नमेंट का, डेमोक्रेटिक इन्फ्लुएंस, वो उनमें इनकलकेट को करने को बोला. लेकिन एक बात बताओ, गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि डेमोक्रेटिकली, लेकिन दे वर नॉट आस्क्ड. जैसे आप देखोगे कि यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, यहाँ भी आवाज़ उठती रहती है, मराठवाड़ा विदर्भ होता है ना. लेकिन ये कब होगा? जब यहाँ की असेंबली उसे पास करेगी, बिकॉज दिस असेंबली रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ द पीपल. कुछ लोग सेपरेटिस्ट है ना. आप, मैंने क्या कहा, वही तो प्रॉब्लम आ जाती है. वी से कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वी स्टैंड ऑन दैट, नो डाउट. बट व्हेन इट कम्स टू कश्मीरीज, हम उन्हें या तो सेपरेटिस्ट समझते हैं या टेररिस्ट समझते हैं. इट्स नॉट अबाउट, सी वन मोर थिंग, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंटीग्रेटिंग, इमोशनली इंटीग्रेटिंग कश्मीरीज टूवर्ड्स us. It is also, we also have to build up that psyche that no, they are same, equal. Like I am from a different state, you people from different state, but you don't feel that, na? And in whatever time I have taught you, have you ever thought feeling that he is coming from a different part of the country? No. But whenever a Kashmiri comes, we say that he is from a different part of a country. Whenever someone from Northeast comes, we say he is from a different part of country. See, ये एक two-way process है. That's why the government is saying कि हम अलग अलग जगहों पे इस तरीके के, अब शायद वो कुछ प्रोग्राम्स चलाने वाले हैं अबाउट इंटीग्रेशन. तो वो भी ज़रूरी है, सिर्फ उनके करने से नहीं होगा. ये सिर्फ एक तरफ पॉलिसी, यहाँ पर भी हमें भी उन्हें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करना पड़ेगा. क्योंकि जब भी हम कश्मीरी की बात करते हैं, आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, दिमाग में तो सेपरेटिस्ट आता है, टेररिस्ट आता है. सर एकदम तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी तक उनका जो एक्सप्रेशन था. We can work with the NGOs over there. हाँ, दैट कैन बी डन ऑब्वियसली. वो एक जैसे ड्रग एडिक्ट है, कोई ड्रग एडिक्ट है, उसका रिहैबिलिटेशन में टाइम तो लगता है. दैट आई एग्री कि वो एकदम से नहीं होगा, बट यू हैव टू टेक स्टेप्स फ्रॉम. सर फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे सरयत करके एक एनजीओ है पुणे में, संजय नाहर चलाते हैं उनको. तो वो हर साल कश्मीर के 50-100 ऐसे बच्चे लाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको कल्चरली एजुकेशनली एम्पावर करते हैं, ठीक है. लेकिन अभी उनकी जो थिंकिंग है वो चेंज होगी. फिलहाल मीन्स अभी गणपति का शुरू हो गया, तो स्टार्टिंग में जो डेकोरेशन का इनॉग्रेशन किया, तो कश्मीरियों के हाथ से किया. जो कश्मीरी लड़के थे, लड़कियाँ थे, वो वहाँ पे पढ़ते हैं. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. दैट इज वन वे. दैट इज द ओनली वे. यू हैव, आपको सिर्फ उनकी तरफ फोकस नहीं करना है, आपको इधर भी एक आम फीलिंग है टुवर्ड्स कश्मीरी, नॉट कश्मीर. देयर इज अ डिफरेंस, बिकॉज हम दोनों को अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं. For our institutions from the Pune Ferguson College and the SP College, they are going to open the institutions in the. Yes. That is one of the way. The teachers from this area, they will communicate with them. There That- will be communication. Yes, but that is no. Always there will be a two-way communication. The two way.
वन वे कम्युनिकेशन से नहीं होगा कि हम सिर्फ उनके लिए पॉलिसीज़ बनाते रहें, हमें यहाँ भी आम लोगों के अंदर उस इमोशनल इंटीग्रेशन को, उस इमोशनल फीलिंग को एक्सपैंड करना पड़ेगा. We can say that we have to tackle with their hearts rather than minds. Yes. For example, those persons from the Meghalaya and Northeast or Maharashtra government also provide assistance to them Yes. for living, education and so many activities. Yes. After years also. स्कॉलरशिप का जो फॉर्म रहता है ना सर, मतलब जो इंजीनियर में ईबीसी जो मिलते हैं स्कॉलरशिप, उसमें जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए भी हाँ, scholarship। तो वही चीज़ है ना, हमें दोनों तरफ से इंटीग्रेट करना पड़ेगा. वी सी आई एज अ पर्सनल एट पर्सनल लेवल मेरा ये मानना है, व्हेन यूपीएससी इज नॉट अबाउट नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट, अगेन इट्स ऑल अबाउट जनरेटिंग योर ओन ओपिनियन. And if you have generated an opinion about a particular thing, then why not to express it? मतलब मैं आप लोगों के साथ वो नहीं, मैं जब थोड़ा सा फ्रेशर, बहुत ज़्यादा जो ग्रेजुएट वगैरह अंडर ग्रेजुएट बैचेस जो होते हैं ना, पहले आ जाते हैं, मैं जब वहाँ क्लास ले रहा होता हूँ ना, तो मैं एक एक बच्चे से एक एक सवाल, हर सवाल एक एक बच्चे से पूछता हूँ. पीपल से क्या बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, मैं नहीं, वॉट आई एम गिविंग इज़ अ बेटर ग्रूमिंग टू देम. बोलना नहीं सीखोगे तो वॉट ही सेड इज़ राइट, that you have to participate, one thing. And understanding, देखो अब आप बोलोगे सर कश्मीर इतना बड़ा प्रॉब्लम है, आपने तो इतनी किताबें पढ़ ली, आप इतनी बात कर रहे हो, लेकिन ऑनेस्टली बताओ कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह है ना. मेरा रूम पार्टनर अपने घर के पीछे की, मतलब उसका जो गार्डन है ना, उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ, मतलब स्विट्ज़रलैंड कुछ नहीं, यहीं चले जाओ. इसके गार्डन, घर का मतलब जो बैकयार्ड गार्डन था वो इतना खूबसूरत था. सो what we said, we were discussing this, that yes, आप पहले थोड़ा सा अपने आप को और रिवाइव करिए, इट इज़ रिक्वायर्ड. कहाँ से आएगा? कंटेंट रीडिंग से आएगा. डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियोज़ नहीं देखना है, डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है. देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ वीडियो जो नॉर्मली मेड हो गया एंड डॉक्यूमेंट्रीज. वॉच डॉक्यूमेंट्रीज. वीडियो तो कश्मीर में बहुत मिल जाएंगे, बीबीसी की या किसी एक ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ एजेंसी की कई डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं. क्योंकि वीडियोस जो नॉर्मली आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे यूज़ हो रहे हैं ना, दे आर मोर दे आर हैविंग अ बायसनेस. जो भी बना रहा है, जिस भी तरफ से बना रहा है, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट कौन. सो कमिंग बैक दैट यस, एनीवन एल्स, पीपल आर क्वाइट साइलेंट. गुड ऑब्जर्वेशन. Like if we, यस यस, एनीवन. So tourism we can shift from focus on all over India to Kashmir. नहीं, टूरिज़्म तो है कश्मीर में, उनकी लाइफलाइन है वो तो पहले से उनकी लाइफलाइन है. उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है. उन्होंने जो एक बहुत बड़ा सेक्शन कश्मीरीज़ का जिसने मिलिटेंसी को रिजेक्ट किया, वो इसीलिए किया कि जब मिलिटेंसी का इंसिडेंस ज़्यादा होता है तो टूरिज़्म कम होता है, टूरिज़्म कम होता है तो उनका लाइवलीहुड पे फ़र्क पड़ता है. दिस इज़ गोइंग ऑन. यस. Even if we see, if you compare the situation of the police system which was in India, like in Mhm. the late 90s, the society was alienated from the police system itself. They were of the opinion that police system is simply corrupt and they are doing only their work and not for the welfare of the society. But then when the commission was formed typically in Maharashtra, and there were few initiatives that were taken as long as I have read. There were certain initiatives in Maharashtra, Chhatra Police Sangatna. It's like student and police union. So under this activity, what they did the integration with the student. What happened eventually? They got connected with the rootest element of the family, and the root element got their parents connected to the police system. Eventually, what happened? Even when the crime rate was increased in Maharashtra, they eventually formed the group of people when it comes to particular gully or mohalla in Maharashtra. And then what this actually led to in governance part was the people's participation. That led to bridge the gap between the police system and people in Maharashtra. Eventually, what is happening with the people of Jammu and Kashmir is they are feeling alienated from the system. Second, they are feeling alienated and they don't feel that army is there to protect them. So we can definitely build certain policies that will bridge the gap between the security personnel, those are people are there for their safety and the security, and the initiatives can be taken. Yes, one thing that I believe needs to be done throughout the country. हमारा अभी भी पुलिस के साथ, जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि पुलिस के साथ एक रिलेशन आम सिटीजन का अच्छा नहीं है. क्रिमिनल्स का ज़्यादा अच्छा होता है.
things, some certain things are off the record. We cannot on the on you know record we cannot go such things. So I believe कि आपको कश्मीर का problem समझ में आया. Possible solutions, some were very good. Rather, it more requires than a political. We require a social integration, and that can be achieved by economic inclusion. More economic inclusion. But हाँ एक yes. Talking about the social inclusion and economic development, it teaches us that in Adani Park there are 5 plants related to solar energy and hydro energy. Yes. The tenders are going to go for the private sectors, and most of the Indian companies are going to invest there, and foreign companies also invited to work there. See, this is one fear that is perpetuating in Kashmiris, that after this there will be a capitalization of Kashmir. They are fearing this. So we should wait. इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इस डर से हैम्पर कर दें, क्योंकि जो भी लॉज एप्लीकेबल हैं फॉरेन कंपनीज़ के लिए या दूसरी कंपनीज़ के लिए वो और जैसे लाइक अभी एमपी में जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि अगर आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ओपन अप करनी है तो 70% जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपको लोकल्स को देना पड़ेगा. तो अगर गवर्नमेंट कम्स अप विद सच काइंड ऑफ पॉलिसीज़ कि दोज हु वांट टू ओपन इंडस्ट्रीज़ इन कश्मीर एटलीस्ट एट वॉट एवर लेवल, जो एटलीस्ट 60-70% जो भी गवर्नमेंट तय करती है कि कम से कम उतना एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करे. एंड आई बिलीव इफ वी कम टू CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट है, फॉर कश्मीर इट शुड बी इंक्रीज्ड बिकॉज दैट रीजन हैज़ फेस्ड अ लॉट. तो जब हम CSR की बात करते हैं, अगर कोई भी कॉर्पोरेट वहाँ जाए, बिल्कुल लाइक यू कैन गो इन एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, आप वहाँ भी जाएंगे. वहाँ जा रहे हैं तो अगर बाकी कंट्री के लिए 2% है तो उनको 3-3.5% थोड़ा सा ज़्यादा दें, ताकि स्कूल्स अच्छे हो. क्योंकि मोस्टली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एजुकेशन वाला पार्ट को ज़्यादा, एजुकेशन और हेल्थ को ज़्यादा वेटेज मिलता है, व्हाट आई हैव सीन. तो उसके तहत अगर थोड़ा सा ज़्यादा गवर्नमेंट कर दे तो दे कैन हैव अ बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी. वी हैव टू. सो इट रिक्वायर्स अ सोशल पॉलिटिकल इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हमें सोशो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करनी चाहिए, एंड विच कैन नॉट बी डन इट्स नॉट अ वन वे प्रोसेस, इट्स अ 2-way प्रोसेस. हमें भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा उनको देना, जिसे हमने दिया ना. हमने जब आइडेंटिफाई किया दैट वी हैव सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, we came up with the concept of reservation, then we came up with further more reservation, ताकि वो सोशली और इकोनॉमिकली एजुकेशनली सोशली और एजुकेशनली वो एक लेवल पे आ जाए. तो थोड़ा सा इम्पीटस देने की ज़रूरत है इन कमिंग टाइम. खैर, सो समझ में आया कुछ. नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ एग्रीकल्चरल एंड लैंड रिफॉर्म्स. अच्छा, बिफोर दैट थोड़ा सा भी हमने पंजाब को, जब हम इंदिरा गांधी का एरा डिस्कस कर रहे थे, हमने इंसर्जेंसी इन पंजाब को भी डिस्कस किया. व्हाट वाज द रीज़न दैट इन पंजाब इंसर्जेंसी वाज ओवरकम? मतलब जिस हिसाब से वो 1980s में थी, 1995 तक आते आते इंसर्जेंसी वाज ऑलमोस्ट ओवर एंड पीपल केम अप फॉर द अनदर सॉल्यूशन. व्हाई? तो वो तो 60s की बात है. हम मतलब इंसर्जेंसी पंजाब में जो शुरू होती है 1980s में शुरू होती है, और बाय 19 मतलब वो 15 साल का एक छोटा सा पैच है पंजाब में इंसर्जेंसी का, लेकिन आफ्टर दैट पंजाब फ्लरिश्ड लाइक एनीथिंग. व्हाई? व्हाट वर द स्टेप्स दैट दे टुक? व्हाट थिंग्स दैट दे पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें. हाँ, पुलिस, पंजाब पुलिस बहुत बड़ा रोल होता है. दैट्स ट्रू. KPS गिर थे उस टाइम में पंजाब में, तो उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इंसर्जेंसी को खत्म करने में. और पंजाब में सर जो प्रॉब्लम थी अनएम्प्लॉयमेंट की थी. अनएम्प्लॉयड जो पर्सन थे वो इधर चले गए थे, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की थी उन्होंने. No doubt, there were good steps, especially after Operation Blue Star. बहुत स्पेशल स्टेप्स वर टेकन टू, अगेन जो हम आज बात कर रहे हैं ना कश्मीरीज की, कि इमोशनली. और दूसरी चीज़, वहाँ के लोगों को एक चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ गई कि दिस वायलेंस इज़ नॉट अ सोल्यूशन.
because if you'll see in Punjab they are mostly business class people, या तो फार्मर्स हैं या दूसरे बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर्ट हो रहा था दिस इंसर्जेंसी से, और ये उन्होंने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया कि पॉलिटिकल सोल्यूशन जो है वो इजी मेथड है कमिंग, लाइक आई विल से कि बहुत सारे ऑफिसर्स दे वर मार्टर्ड, इवन CM बेअंत सिंह वाज मार्टर्ड, लेकिन उन लोगों ने जो स्टेप्स लिए उसको लोगों ने एम्ब्रेस किया एंड इट वाज समवॉट इंटीग्रेटेड, नॉट इमोशनल जो हम एक टच की बात कर रहे हैं. By 1995 it came to a slowdown, and today after 1995 it's almost 25 years, you will see Punjab has emerged as a flourishing state, even after facing almost 1.5 decade of militancy and unrest throughout the state. Now we come to agrarian reforms. My first question to you is, why agrarian reforms is so crucial when it comes to economic development of India? और बहुत सिंपल टर्म्स में एक सवाल पूछो तो व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, अब बता दोगे? सर ये जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है सर, ओके, इसको ओवरकम करने के लिए वी नीड टू सप्लाई आवर पुअर पीपल विद चीप फूड ग्रेन, एंड सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रोड्यूस दैट मच अमाउंट which we can. what you're saying that we should move from subsistence agriculture to commercialization, और कुछ? Agriculture is the first milestone. एग्रीकल्चर इज द First milestone. Agriculture के बाद ही तो इंडस्ट्री होगा, फिर उसके बाद ही तो सर्विस होगा. ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है, तो इसका फर्स्ट पार्ट रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है एग्रीकल्चर, और तो प्राइमरी मीट नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे कैसे? थोड़ा सा और जाओ, अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो, थोड़ा सा और पुश करो. एग्रीकल्चर बेस है ना ज़्यादातर. हाँ नहीं वो ठीक है, वो तो वो इसराइल को नहीं करता, उन्होंने ड्रिप इरिगेशन हाइड्रोपोनिक सब डेवलप कर लिया उन्होंने. इन्फ्लेशन भी कम होता है सर, जो सप्लाई और डिमांड. अभी उस पर बाद में आएंगे. नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है सबसे ज़्यादा है, 71% और उसका जो कंट्रीब्यूशन है जो टेकिंग एज प्राइमरी सेक्टर, सो मेनी सेक्टर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डेयरी मिल्क इंडस्ट्रीज. ओके, और Too many people are dependent on agriculture, and because of that, those people are not doing something else. And unless we bring reforms in agriculture, those people can't be shifted to another sector. you know what is the biggest responsibility on agriculture sector? सर जो सरप्लस प्रोड्यूस होता है उसको एक्सपोर्ट फैसिलिटीज. थोड़ा सा और. To make India self-sufficient in food. The biggest responsibility on agriculture is to feed the non-agriculture sector. तभी तो आप ये सोचो कि सिर्फ एग्रीकल्चर वो अपने लिए उगा लेंगे, तो नहीं, तब तो दूसरा सेक्टर खाएगा क्या? इट दे हैव टू प्रोड्यूस फॉर द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, फूड स्पेशली. हम इंडिया में, इंडिया इज ऑलवेज सिंस एंशिएंट टाइम्स, सिंस मिडिवल टाइम्स, इंडिया हैज़ बीन अ एग्रेरियन society, we are an agrarian economy. Even after a huge wave of industrialization, modernization, mechanization rather, हम अब भी एग्रीकल्चर पे कहीं ना कहीं heavily dependent हैं. और जो एग्रीकल्चर सेक्टर हमें आज़ादी के वक्त मिला, which was ridden by, which was you know suffering from rather heavy taxation, lack of technology, uneconomic fragmentation of land, zamindari system, exploitation of tenants, you know, low productivity. You know the difference between production and productivity. हम उस वक्त, एक बात बताओ, हम तब 50 मिलियन टन उगा रहे थे, आज हम 300 के आसपास पहुंच गए हैं. कहाँ से? लैंड थोड़ी बढ़ गया है, इंडिया का हमने एक्सपैंड थोड़ी कर दिया है, बट उसी, और अभी भी हम अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं आए. स्टिल देयर इज अ ह्यूज स्कोप
इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, प्रोडक्टिविटी रादर ऑफ द लैंड। अभी भी हम अपने फुल पोटेंशियल पे, प्रोडक्टिविटी पे नहीं आए। खैर, तो एक ऐसा एक एग्रीकल्चर सिस्टम मिलता है जहाँ मोर देन एवरी थर्ड पर्सन is in one way or other dependent on agriculture, every third person, मतलब rather every 3 out of every 4 persons is dependent on agriculture for production, for livelihood। लेकिन तब productivity नहीं थी, proper market structure नहीं था, taxation ridden था, और सबसे important जो चीज़ जिसने agriculture reforms को, agrarian reforms agriculture sector को hit कर रखा था, that was the ज़मींदारी सिस्टम। सो व्हेन वी से एग्रेरियन रिफॉर्म्स, उसमें सबसे पहले हमने किस चीज़ की बात की? हमने बात की अबॉलिशन ऑफ ज़मींदार्स एंड जागीरदार्स, अबॉलिशन ऑफ ज़मींदार्स एंड जागीरदार्स। इसके बारे में हमने कल डिटेल में पढ़ा था, नो नीड टू गो बियॉन्ड दैट। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट टेनेंसी रिफॉर्म्स। सिर्फ ज़मींदार या जागीरदार के अबॉलिशन से काम नहीं बनता, वी नीड टू गो फॉर टेनेंसी रिफॉर्म्स। वी नीड, जो टेनेंट था, जो कल्टीवेटर था, जो रियल टिलर ऑफ द सॉइल था, उसको उसका हक मिले, उसको उसके रिफॉर्म, उसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन रिफॉर्म हो, उस पर हमने काम किया। और सबसे पहले हमने उसके भी 3 ब्रॉडर एस्पेक्ट्स थे। पहले हमने कहा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मतलब कि अगर आप किसी को टेनेंट रख रहे हैं, अब भी रखते हैं, देखो अब भी होता है, टेनेंट अगर रख रहे हैं तो देयर शुड बी a proper agreement, there should be a security of tenure कि उसे कम से कम इतने साल तक के लिए आप रखेंगे। दूसरा, जो रेंट वो पे करेगा उसे रेगुलराइज किया गया। ऑब्वियसली if someone is using land then that rent has to be regularized। and कई ऐसे लॉज बने, कई ऐसे सिस्टम बने जिसमें कि अगर if given opportunity the tenant can become rather the owner of the land। तो ये एक टेनेंसी के रिफॉर्म्स की बात है। एक होती है लैंड रिफॉर्म्स, जहाँ हमने सीलिंग की बात की, जहाँ हमने कहा कि नहीं ये ज़मींदारी अबॉलिश होगी, जागीरदारी अबॉलिश होगी। सीलिंग्स पे अगर हम बात करें, लैंड सीलिंग की बात की, लैंड सीलिंग में भी जब देखा गया तो ज़्यादा कुछ इतना हुआ नहीं, क्योंकि एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जब इट वाज द मेनी ऑफ द ज़मींदार्स वर सिटिंग इन द असेंबलीज इन द पार्लियामेंट, और उन्हें पहले से इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था दैट दिस समथिंग सच काइंड ऑफ लॉ इज़ गोइंग टू कम, तो उससे पहले ही उन्होंने अपना लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन इस चीज़ को, मतलब जो टारगेट था हम उसको बिल्कुल भी, मतलब 2% 3% तक ही अचीव कर पाए। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ मूवमेंट, एंड दिस क्वेश्चन हैज़ केम इन द एग्जामिनेशन। 1951 में भूदान मूवमेंट शुरू हुआ। Bhudan movement was started by Acharya Vinoba Bhave, who was himself a Gandhian person belonging to the Gandhian school of thought, और उन्होंने सत्याग्रही थे, भूदान या ग्रामदान मूवमेंट की बात की, और और उनका टारगेट था कि मतलब उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि हर कोई अपने लैंड का 1/6 दान कर दे, 1/6। तो उनका टारगेट था समवेयर अराउंड, ब्रॉडर नहीं, देखो सक्सेसफुल था, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो टारगेट्स जो उन्होंने टारगेट्स बनाए थे वो अचीव नहीं कर पाए। वो टारगेट्स वो अचीव नहीं कर पाए। उसकी वजह क्या थी? एक्चुअली देखो, व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट, देखो आप बोलोगे फ्रीडम के टाइम पे तो सत्याग्रह बहुत अच्छा चला, आज़ादी के बाद हमें कोई भी ऐसा इंस्टेंस नहीं मिलता जहाँ सत्याग्रह जो है वो सस्टेन कर गया हो, कहीं नहीं करा। भूदान मूवमेंट देख लो, आप चिपको आंदोलन देख लो, हुआ ना, शुरू में तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन एक पॉइंट, अभी आप इवन अन्ना हजारे का मूवमेंट देखो, वो सत्याग्रह शुरू बहुत अच्छा हुआ था, वो जाके कहाँ ख़त्म हो, उसकी एक वजह है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ, बहुत माइनर एग्जाम्पल, दैट आई टीच फॉर 7 days continuously, हम यहीं रहेंगे, सबको यहीं रुकना है, आई विल कीप ऑन टीचिंग। मगर आपने अगर वो 7 दिन का कैप्सूल ले लिया, सिलेक्शन गारंटीड, ठीक है, आप 7 दिन बैठोगे? ओ देखो आई आवाज पीछे से। हाँ, if I assure you that selection is guaranteed, you will sit.
7 दिन तक तो हम पढ़ेंगे सब बिल्कुल एंथुसियाज्म, मैं बोलूँगा नहीं यार आज एक दिन और, क्यों? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अचीव करना बाकी है, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा बाकी है। आप थोड़ी देर तो बैठोगे, फिर आप छटना शुरू हो गए। 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन तक तो कोई पता चला उठा के जूता मार देगा, पागल वागल हो गए, एंड यू विल लीव। सी व्हाट हैपन्स, दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन मूवमेंट स्टार्ट्स। जब तक लोगों को ये एश्योरेंस है कि हमें हमारी चीज़ मिल जाएगी, तब तक तो वो उस मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल में हुआ, उन्हें आज़ादी दिख रही थी, कर लें थोड़ी और मेहनत कर लें, थोड़ी और मेहनत कर लें, तो वो सस्टेन कर गया। लेकिन आप फ्रीडम के, इंडिपेंडेंस के बाद के जितने सत्याग्रह देखोगे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आगे लोगों को लगता है कि ठीक है इतना तो अचीव हो गया ना, बाकी हम अपना दाल रोटी देखें, क्योंकि वो लार्जर इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो पाता है। आप जितने मूवमेंट्स देखेंगे जहाँ सत्याग्रह या इस तरीके के मेथड्स यूज़ हुए, भूदान मूवमेंट देखो, शुरू में बहुत अच्छा चला, उसके बाद एकदम से डिटेरियोरेट होने लगा, फिर गायब हो गया। आप चिपको आंदोलन देखेंगे, वो भी थोड़े दिन बहुत अच्छा चला, फिर वो डिटेरियोरेट होने लगा। अन्ना हज़ारे अप्रैल में जो उन्होंने एक बार 2010-12 में शुरू किया था, बहुत अच्छा था। आते 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 अगस्त में जब वो दोबारा आए तो वो कोई मीडिया भी नहीं गया कवर करने, क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट नहीं था। लेकिन आप देखोगे जब निर्भया केस हुआ, देयर वाज अ ह्यूज मास मूवमेंट, और वो चला, वो 7-8-10 दिन चला। कब तक? जब तक गवर्नमेंट ने, है ना, ऑर्डिनेंस जब तक नहीं आ गया था। ऑर्डिनेंस आया था सबसे पहले, जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, और उसके बाद ये सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, ये चीज़ें आई, है ना। ना सी द डिफरेंस, एक तो कॉज, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वुमेन सेफ्टी की बात आई तो लोगों ने उसको अपने आप से रिलेट करके देखा। एक और इम्पॉर्टेंस है, जब किसी मूवमेंट को, किसी सत्याग्रह को सस्टेन करना होता है तो लोग उसमें इन्वॉल्व क्यों हुए? क्योंकि उनको, लोगों को लगा कि नहीं, ये हमारे घर में भी बहन बेटी है। लड़कियों को तो खैर डेफिनेटली देवर कि वी वांट मोर स्ट्रिक्ट लॉज ओवर दीज स्टफ। लेकिन when it comes to something like भूदान और सेविंग ट्रीज, लिमिटेड होता है वो। जब तक उनको जितनी देर जोश रहता है ना, उतनी देर वो रहते हैं। उसके बाद वो भूदान मूवमेंट अच्छा था, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट डिक्लाइन। नो डाउट उससे काफ़ी कुछ बेनिफिट हुआ, काफ़ी लोगों ने अपना लैंड, जो एक्सेस लैंड था 1/6 की वो बात कर रहे थे, वो उन्होंने दिया, एंड दिस वाज भूदान मूवमेंट पे क्वेश्चन आ चुका है एक बार। एंड द फोर्थ पार्ट जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ द कोऑपरेटिव सिस्टम। कोऑपरेटिव चाहे वो अब, है ना, फार्मिंग में देख लो, बैंकिंग में देख लो, जो हमने प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग की हमने बात की कि हर बैंक को अपना 40% जो लेंडिंग है वो प्राइमरी सेक्टर को देना पड़ेगा। इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ थी, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने CDP पढ़ा, पंचायती राज। तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं, जैसे आप देखोगे हर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू फर्टिलाइज़र, सीड्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है गाँव में स्पेशली। तो एक कोऑपरेटिव कल्चर को डेवलप किया गया, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रेरियन रिफॉर्म्स इन दिस कंट्री। फाइन, समहाउ हमने एग्रीकल्चर में नो डाउट बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। हम खाना बाहर से मंगवा रहे थे, आज हम दुनिया को दे रहे हैं। तो इन चीज़ों पे हमने काफ़ी कुछ मेहनत किया है। स्टिल अ लॉट हैज़ टू बी डन, क्योंकि आज भी अगर हम वी आर स्टैंडिंग इन अ स्टेट विच इज़ फेसिंग अ सीवियर फार्मर्स डिस्ट्रेस, एंड वो हर बार वो प्रॉब्लम उनकी भी नहीं है यार, वो रेन शेडो एरिया में आ जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते उसका मतलब। हाँ, गवर्नमेंट उस पर चाहे तो कुछ स्टेप्स लेके, इरिगेशन स्टेप्स या कनेक्शन ऑफ लिंकिंग ऑफ रिवर्स, इन सारी चीज़ों को वो टैकल कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट एग्रेरियन रिफॉर्म्स। और सर, फार्मर डिस्ट्रेस में एक्चुअली जो प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स है उसका कितना रोल है, और जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कमिटीज वगैरह होती है जो कॉस्ट डिसाइड होते हैं उसका कितना रोल है? देखो, फार्मर्स डिस्ट्रेस बेसिकली जो आ रहा है, वो आ रहा है द विदर्भा रीजन, सेंट्रल डेक्कन प्लेटू, rather than central India, the central part of Deccan Plateau। वजह क्या है? एक तो रेन शैडो एरिया, ठीक है, जिसकी वजह से बारिश
जितनी होनी चाहिए तो वो सारी बारिश तो वो कोंकण पूरे बेल्ट में हो जाती है, वेस्टर्न घाट्स क्रॉस ही नहीं कर पाता, वेस्टर्न घाट्स के डाउनहिल पे कभी बारिश होगी नहीं, ठीक है। फार्मर डिस्ट्रेस में हाँ थोड़ा सा, although the government has given a target कि that by 2022 the farmers income will be double, but that requires मतलब ऐसा ना हो कि फार्मर की ग्रॉस इनकम डबल नहीं करनी है, पता चला इनकम तो डबल हो गई, कॉस्ट ट्रिपल हो गई। तो हमें कोशिश करनी है कि हम नेट इनकम डबल करें, एंड फॉर दैट वी रिक्वायर सर्टेन स्टेप्स। देखो वी शुड इंश्योर कि अगर फार्मर जो भी उगा रहा है उसका अगर कोई बाई प्रोडक्ट भी बन रहा है ना, तो उसका शेयर उसमें हो। वी हैव टू डेवलप सच एन इकोनॉमिक मॉडल ब्रॉडली, जो कि अगर गन्ने से पेपर भी बन रहा है ना, तो उस पेपर का कोई भले ही 0.01% हो, लेकिन उस प्रोड्यूस का बेनिफिट उसके कल्टीवेटर तक पहुंचे। क्योंकि होता क्या है, गन्ने ज़्यादातर गन्ने का जो अब पेपर बनाने में यूज़ हो रहा है, अभी इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ होगा, आ रही है टेक्नोलॉजी, है ना। तो अगर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें भी भले आप 0.1%, 0.01% शेयर दो, लेकिन उस फार्मर का उसमें शेयर हो। वी शुड इंश्योर दिस, देन ओनली वी कैन रिलीव फार्मर फ्रॉम दिस डिस्ट्रेस। दूसरा, इंश्योरेंस। अब आपको पता है इंश्योरेंस हो तो जाता है, लेकिन जब उसके क्लेम की बात आती है वो किस तरीके से इवैल्यूएट होता है, यू ऑल नो, देयर इज़ नथिंग टू से हाउ द ऑफिसर्स आर डीलिंग, ठीक है। दूसरी चीज़, आज के टाइम पे हमारे पास GPS, GIS ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे हम अब यूज़ कर सकते हैं फार्मिंग एरिया को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर हम इस रीजन की बात करें, बिकॉज दिस हैज़ सफर्ड द हाइस्ट इंस्टेंस ऑफ फार्मर सुसाइड इन कंट्री, व्हाट कैन बी डन इज़ लिंकिंग ऑफ रिवर्स। यहाँ हम कुछ एरियाज़ को लेके बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स बना सकते हैं, जिससे मतलब अब फॉर एग्जांपल अगर इस तरफ बारिश ज़्यादा है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में बारिश ज़्यादा है, व्हेन यू गो टुवर्ड्स ईस्टर्न एंड द सेंट्रल पार्ट देयर इज़ अ वेरी लेस इंसिडेंस ऑफ रेन, द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज़ वेरी लो। सो व्हाट कैन बी डन इज़ वहाँ पे हम इस तरीके के रिजर्वॉयर्स बना लें कि जो जैसे गोदावरी है या कृष्णा है, जो भी रिवर्स इस रीजन में लोकल रिवर्स फ्लो हो रही हैं, उनसे जो एक्सेस वाटर है बारिश के सीज़न का, उसको हम उस रीजन में ले जाके स्टोर करवा सकें, ताकि जब नेक्स्ट सीज़न हो तो हम उनको लिमिटेड, आप किसान को बहुत कम पानी चाहिए होता है, उनको फ्लड कंडीशन नहीं चाहिए। अब जैसे इस बार बारिश अच्छी हुई है थ्रू आउट द कंट्री, देयर इज़ अ गुड इंस्टेंस ऑफ रेनफॉल, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो उस तरफ नहीं हो रही है, तो वो जो एक्सेस वाटर है उसको किसी तरीके से रिलोकेट किया जा सकता है। हुआ है, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारे ऐसे पॉलिसी जैसे वो शेड का मतलब खेतों में ऐसा नहीं किया, बॉन्ड बना के उसके लिए गवर्नमेंट हाफ मनी उनको वापस नहीं, लेकिन उसको पॉन्ड बनाना नहीं है ना, सिर्फ उस पॉन्ड का वाटर लेवल भी तो मेंटेन करना है। पॉन्ड बनाने से सिर्फ काम नहीं बनेगा, उसका रिप्लेनिश होना, रेगुलर उसका रिफिल होना भी ज़रूरी है। तो ठीक है, कुछ सी कैनाल्स का एक नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है। लाइक इफ़ यू कैन ब्रिंग कैनाल्स इन राजस्थान, व्हाट इज़ इंदिरा गांधी कैनाल, है ना, हम अगर उस रेगिस्तान वाले एरिया में ला सकते हैं तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो लेकिन सोचना पड़ेगा, वी नीड टू वर्क आउट ऑन ऑल द फिजिबिलिटीज़, all the viabilities that needs to be taken care of. But I believe yes, कुछ गाँव को मतलब छोटा नहीं, बड़ा रिजर्वायर बना के, बड़ा रिजर्वायर, छोटा रिजर्वायर पॉइंट से काम नहीं चलेगा, बड़ा रिजर्वायर होगा तो उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। क्रॉप कल्टीवेशन, अगर कुछ एरिया में वाटर के लेवल डेंजर जोन में तो वहाँ पे गन्ना नहीं दे सकता हूँ, शुगर के। हाँ, अगर हाँ, दैट क्रॉप ऑल्टरेशन, लेकिन देखो कन्विंसिंग अ फार्मर कि व्हाट टू ग्रो इज़ वेरी डिफिकल्ट, टेलिंग ऑनेस्टली। लॉन्ग टर्म उनके लिए वो उनको समझ, मैं आई एम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, तो हमारा फाइनल ईयर जो होता है, फाइनल सेमेस्टर, वी यूज्ड टू गो टू द विलेजेस। अब मैं वहाँ गया, बहुत अपना पर्सनल इंसिडेंट बता रहा हूँ, फार्मर को कन्विंस करना कितना मुश्किल काम है। आई बिल्ट अ लाइट ट्रैप इन हिज फील्ड एंड दैट वाज अ सैटरडे। मैंने बड़ी मुश्किल से वो लाइट ट्रैप बनाया कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट आर द व्हाट इंसेक्ट्स आर कमिंग एंड विल डायग्नोज दैट फर्दर। मंडे को गया ऑब्जर्वेशन लेने, तो लाइट ट्रैप गायब। मैं क्या हुआ, बोले इससे कीड़े ज़्यादा आ रहे थे।
सी आप जो हम एक आइडियल सिचुएशन इमेजिन करते हैं ना, हम एक बड़ा पढ़ा लिखा फार्मर नहीं है, आपको एक आम किसान जिसके पास एक बहुत स्मॉल लैंड होल्डिंग है, जो लिटरेट नहीं है, जो एक कन्वेंशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है, आपको उसको सोचना है. यू हैव टू थिंक ऑफ देम दैट पर्टिकुलर. किसी रीजन है ना, वो शॉर्ट टर्म में सोचते हैं. उनको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उनको कन्विंस करना इज़ नॉट दैट ईजी. फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से हाँ. फोकस द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फार्मर्स एज वेल. हाँ, what we can do is we can have programs, government is running programs कि crop intent, अदर ऑप्शन दे सकते हैं आने वाले हस्बैंडरी के टाइम में. हाँ, मिक्स फार्मिंग की बात हो रही है, इस तरीके की चीज़. यस. As a nation, we have the various department. Take the example of space and nuclear. From that area, with the various department and various programs, we succeeded far large, but we failed in agrarian part. So, in future also and in upcoming days, as like these programs are successful, to make this agriculture-based program successful, the department should go direct with the Prime Minister's office. नहीं, sorry. Agriculture is something which is, I have a disagreement over this. देखो, आप कह रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम और जो डायरेक्टली पीएमओ से लिंकअप था इसलिए सक्सेसफुल हुआ, नहीं. एग्रीकल्चर को आप जनरलाइज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन मानसून एंड मानसून इज अनसर्टेन. It is affected by, listen, it is affected by n number of external factors. सिर्फ मानसून नहीं है ना, ड्रॉट भी प्रॉब्लम है, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन भी प्रॉब्लम है, डिजीजेस भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल पार्ट भी आता है, मार्केटिंग है ना, पोस्ट हार्वेस्ट चीज़ें भी हैं. तो हम उसको एग्रीकल्चर को तो जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, जैसे MOFPI अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अलग है. Yes, you want to say something? रिलेटेड क्वेश्चन से बाय ऑब्जर्विंग रियल कंडीशन, जो किसान का बेटा है अभी वो किसान नहीं बनना चाहता, ठीक है. तो जो यूथ है कि जो स्मार्ट फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन वो तो उनमें इन्वॉल्व नहीं होंगे खेती में, ठीक है. तो इन द फ्यूचर सेंस उसका बैड इफेक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि जो यूथ है ज़्यादातर तो वो कुछ इनोवेटिव आइडियाज ला सकते हैं फार्मिंग में, वो ज़्यादातर बाहर हो गए, ठीक है. जो ट्रेडिशनल जो फर्स्ट जनरेशन हाँ. कंटिन्यू करें, तो उसका बैड इम्पैक्ट क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स क्या सी what you're saying that obviously अगर वो इसीलिए देखो, एक तो लैंड प्रोटेक्शन लॉज हैं. आप एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो यू नीड अ परमिशन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन. उसकी वजह है ना हमें फूड सिक्योरिटी. व्हाट यू सेइंग इज़ अगर यूथ देखो वो उस पर कल्टीवेशन करेगा, आज नहीं करेगा कल करेगा, बैरन लैंड कोई छोड़ना नहीं चाह रहा. नुकसान ये होगा कि ठीक है अगर वो कमर्शियल फार्मिंग की तरफ जाता है तो वो क्या करेगा, खाली लैंड नहीं छोड़ेगा, वो पॉसिबल ये है कि वो उसको टेनेंसी पे दे दे, है ना. सो टेंडेंसी तो साधारण लोग ही करेंगे ना. सवाल ये है कि यूथ वहाँ पे आने को स्मार्ट यूथ मींस वी शुड ग्लैमराइज द फार्मिंग. you have to glamorize the farming. For that we need mechanization of farming, but unfortunately Indian farming is not capital intensive because of uneconomic fragmentation of land. For that we have to promote cooperative farming so that all वो एक कि पूरे गांव का एक जो भी खेत का एरिया उसे एक बना दिया जाए. आप वहाँ करिए, वहाँ स्मार्ट फार्मिंग होगी, वहाँ आप सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ आप तो वहाँ क्या होगा, अगर कोई यूथ बोलेगा कि ठीक है हमको फार्मिंग नहीं करनी, हमारा फार्म जो है वो कोऑपरेटिव फार्मिंग का पार्ट है आप करो, हमारा हम उसमें इनपुट नहीं देंगे, जो भी आपका अपना मेहनत का है वो आप लेना, हमारा हमारा शेयर दे देना. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज़ अ डिफरेंट पार्ट. ये इट कैन नहीं, बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रॉब्लम ये मतलब कंपनी इज जस्ट कमिंग विद द इनपुट्स and say cultivate for us, but for there we require someone to cultivate. Sir, again, based upon एक इशू फेस होता है सर, वी हैव द एग्रीकल्चर ऑफिसर्स ऑल ओवर इंडिया. ऑन द ग्राउंड पे जो है और एग्रीकल्चर का ऑफिस को जितना भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है ऑन फील्ड वर्कआउट नहीं करती. उसमें भी टॉप में बहुत अच्छा बनाया जाता है. वो तो देखो वो तो हर चीज़ में है. हमने क्या कहा, हम एक अप्रोच अब हमें चेंज करनी पड़ेगी. हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, अब हमें डाउन टू अप अप्रोच लेनी पड़ेगी. वो हर जगह लेनी पड़ेगी, वो एग्रीकल्चर में तो सबसे पहले लेनी पड़ेगी. So based upon soil suitability, if we consider particularly to the state of Maharashtra, if you can just from a futuristic perspective, if you can divide it into the zones for considering the soil It's suitability. already divided. Okay, and
next steps are like promoting the suitable industries in those areas. Yes. only. So that- What can be done is कि हम फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट करें छोटे रीजन्स में. फूड पार्क्स की जो बात होती है, यू मस्ट हैव रेड अबाउट फूड पार्क्स, उसे और ज़्यादा प्रमोट करें ताकि चाहे वो अब आप बोलो कि यहाँ कॉटन है तो कॉटन प्रोसेसिंग. अब आप देखोगे महाराष्ट्र इज कल्टिवेटिंग कॉटन बट द कॉटन मिल्स आर इन गुजरात. हो रहा है ना. शुगर केन इंडस्ट्री, शुगर कहाँ है? वेस्ट महाराष्ट्र. शुगर इंडस्ट्री कहाँ है? कर्नाटका में ज़्यादा है ना. सी इस चीज़ को थोड़ा सा और दैट्स व्हाट हम सेंट्रलाइज नहीं कर सकते. और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा हमें और डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो आप देखोगे आने वाले कुछ सालों में नए स्टेट्स बनेंगे, बाउंड टू हैपन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और चाहिए, है ना. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फर्दर मोर सेंट्रलाइजेशन वी शुड गो फॉर डिसेंट्रलाइजेशन. यस सर इसका एक रीजन ये हो सकता है कि जिसकी प्रोफेशन को रिस्पेक्ट अलग अलग होती है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए इसलिए भी नहीं आते होते लोग कि उसको अपना डिग्निटी रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में, एज अ कॉमन उनको देखते हैं. देखिए ये तो सोशल माइंडसेट है, इसको पॉलिसी मैटर से चेंज नहीं किया जा सकता. ये ग्रेजुअली चेंज होगी जब लोगों को ये देखो, आपके हर इलाके में एक किसान होता है जो एक इनोवेटिव प्रैक्टिस कर रहा होता है और हर कोई इसको रेस्पेक्ट करता है. उसका एग्जांपल जैसे हरियाणा में गुज्जर सिंह करके हाँ. वो फॉरेन रिटर्न है, उन्होंने एग्रीकल्चर फार्मिंग करके उनको अब्रॉड में बेचा है. तो ठीक है, वही है. तो धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस आम होने लगेगी ना तो पीपल विल रिकग्नाइज दैट इज़ अ सोशल स्टिग्मा. आप उसको किसान, जब भी मैं किसान बोलूँगा अभी तो आपके ध्यान में एक धोती पहना हुआ, सिर पर गमछा बांधा हुआ इंसान ही आता ही है. तो वो आपके और मेरे जहन में बैठा हुआ है, आप उसको इजीली वाइप आउट नहीं कर सकते. इट विल टेक टाइम एंड फॉर दैट पॉलिसी से ज़्यादा खुद चेंज होने की ज़रूरत है. फाइन, इट वाज लॉन्ग डिस्कशन, है ना.